जय राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन हृदन यमुना तीरा वनचारी जय राम कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन राम यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राम राम
ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य श्रोत्र सदस्य श्रीमद आवेचनानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे Krishna. So I welcome all of you for today's session. Today, Srimad Bhagavatam, we are going to discuss second canto, fifth chapter. So I'm very much thankful for all of you for getting once again all of your association. So we have 5 days and our schedule will be like this. Yeah, total 6 chapters are there from 5 to 10. So there is total 6 chapters. Today we have to, of course, we have to understand the content, the purpose of studying Bhagavatam also we should try to fulfill, and also as well as we have to maintain the time. So that means as per schedule, if we have to finish 6 chapters in 5 days means today we will be reaching in 6 chapters 17 sloka. So finishing 5th chapter and 6th chapter 17 sloka will be finishing, so that appearance of so Virat Rupa will be over by this. So how he is manifesting and also how he is all the different ingredients which are there in the Virat Purusha all are coming from the Supreme Lord. So that we will be understanding. So that this will be bringing that consciousness of everything is Lord. Actually, everything is Lord and everything is in Him.
So that, and then after that tomorrow, so from 17 sloka onwards, we have 6 chapters, 17 sloka onwards, 18 sloka onwards, we have to go. So till 7th chapter, at least half. So that next another one more day, that means second day is sixth finishing, sixth chapter ending. We have little bit discussions, which are very important. And in seventh chapter is just listing out the various avatars. It will be quite easy, and also these are all not having any connection. They're all individual slokas. They are telling about the various different avatars. So that's why there we don't get stuck actually, and we can quickly finish the seventh chapter. That means tomorrow, if we finish half, if well, that's if you are able to finish everything else completely, but at least half. So then Wednesday, 7 chapters half, and also remaining 8th chapter, and we should enter into the, if possible, 9th chapter, because 9th chapter is very very important actually. It takes at least 1.5 days. So that is my main intention. So where the Brahmaji is seeing Vaikunta, and after seeing Vaikunta, he is describing the different features of Vaikunta, which establishes various philosophical aspects, and also which is very important for us to understand that section. And there you will be seeing the Chatusloki Bhagavat also. It itself is a very important section. And if we need a lot of, that means if we any amount of time, even the 2-3 days also is not sufficient actually. Even 15 hours, 20 hours also is not sufficient. But we try to give as much as possible time there. Then from there, because both acharyas, Srila Jiva Goswami and also Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Prabhupada, is taking the both from the both commentaries, and extensively commentaries written there, which is very much important, and is a core philosophy can be touched there. So then after that, in the next, that means uh, Wednesday we finished 8th chapter, then Thursday, Thursday completely, and also Friday half afternoon till afternoon, and 10th chapter, 10 topics, 10 topics of Srimad Bhagavatam. That is also very important, establishing Ashraya Tattva, and the whole Bhagavatam is meant for describing the Ashraya Tattva. All the 9 other tattvas are the sections, what of the Vishayas are there. So 10 topics, other 9 topics. The purpose of 9 topics is so understanding the 10th topic, that is Ashraya Tattva, that is Sri Krishna, and that is being established in many ways. Very important section, that the first half of the 10th chapter. That we'll do. Then remaining second half of the 10th chapter, we will not be able to cover actually. That is only list actually, how Virat Rupa is appearing. Once again, there you see the description. So that can be done as a self-study. That means second half of 10th chapter will be the self-study. So this is my planning, and let us Krishna will bless us, and so that we can finish this. And that's my just one contemplation. Anyway, everything is in the hands of Krishna ultimately. We are trying to design something. Okay. So we'll begin our section, 5th chapter. Just already 1 week, more than 1 week is over. Na? 1 week, I think. 1 week over. So let us just recall the things so that we can have some little connection. First 4 chapters. So just quickly, I don't want to give much time, 10 minutes, no 11:16. So sharply 11:26 we should stop this revision. So we'll relish everything with the time actually. Time is also our companion actually. We cannot undermine time. Time is so powerful. That is we are going to understand today how it is going to
So create the things. Time is very powerful element. So and also it is one of the form of the Lord actually. So that's why we should be carrying the time also. So okay, just the beginning of this canto, Parikshit Maharaj asked question in the ending of the first canto last. In that last section, we have seen Parikshit Maharaj asked question. So what should be done by a person who is going to die? So he has what he has to hear, what he has to chant, and what he has to remember, and also what he should not, what he should not chant, and what he should not hear, and what he should not remember, so and so. So like that, he asked the question. So then after that, Sukadeva Goswami got excited. So by hearing this question, so because this question is also related to the Krishna and any topics related to the Krishna, so that automatically brings the so much joy in the heart of the Sukadeva Goswami. Of course, they are in the all the time in the meditation of the Lord, but this question is even so magnifying their pleasure actually. So that's why Sukadeva Goswami got excited and he started glorifying question and also glorifying so Parikshit Maharaj. And then after that, in reply to this question, he gave so answers. So he said that what should not be heard in the beginning. Then after that, he said what should be heard. So Hari, Sarvatma, Bhagavan, Ishvara. So being Bhagavan, okay, I'll open that. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्यता भयम. So this is the conclusion of the answer actually. What is the conclusion? The conclusion is one should hear all the time. So Hari and also chant and also remember. Then after that, what he said? See the spoken telling. No, if you are able to see by this, maybe it is a hint. Narayan Smriti means what is the meaning of means? Ultimate end is Shuddha Bhakti. Narayan Smriti means Shuddha Bhakti. So all the process, whoever are following whatever the different process, they should come to the Shuddha Bhakti. That means they should get the association of pure devotees and they should come to the Shuddha Bhakti. Yes. And then after that, he is glorifying hearing the Krishna Katha. He is the highest pleasure giving thing. Ramante means is the most pleasure giving thing. And then that is nothing but what? Srimad Bhagavatam that he got from his father at the beginning of ending of Dwapara Yuga. Yes? And it is also known as Brahma Samhita. Bhagavatam is known as Brahma Samhita, where Brahman is also being measured, the pleasure of the Brahman. So then he gave the example. He is only the example for this. Yes. So who left the Brahman pleasure and started so relishing the pastimes of Krishna. And his heart is attracted towards the pastimes of Krishna. Gruhita Cheta. Yes. So that he said, then he's saying that he is going to give that to Parikshit Maharaj. The total Bhagavatam he is going to give. His father compiled from the beginning to ending. So everything he heard from his father, and then everything he is going to give. So that means he gave, Sukadeva Goswami discussed entire Srimad Bhagavatam. Then after Parikshit Maharaj, after hearing this, what he said? After hearing the glories of the chanting Hari's qualities, what he said? I don't have time, he said. So, oh my God. So you said such a beautiful thing now. I don't have time. What should I do? Then Sukadeva Goswami said that, oh, no problem. Actually, even one muhurta is enough. What is the need of the so many hours?
So one muhurta is enough, and the example is pramana is there Katvanga, and so you have more than that. Katvanga made his life successful just by one moment, one muhurta. So now you have Saptaham Jivitavadihi. You have one more. That means complete week you have with you. So don't worry for that. So then after saying this, topic is diverted. Yes? Where he went? Ashtanga Yoga. Why? To? Enhance the flavor of Bhakti. sugar by giving Kerala. Yeah. So enhance or to glorify Bhakti with comparison with the Ashtanga Yoga. So then this whole thing is Ashtanga Yoga. Second chapter, first chapter half and second chapter completely we have seen, and it ends where second canto or second chapter, sloka number 31. 31. Till there, the whole discussion happened. Many things we discussed there. Yes? Sadhya Mukti, Krama Mukti, like that, two different paths. And also, if one has to, that means all the 8 limbs we discussed. And if one is not able to meditate on the Paramatma in the Dhyana stage, then he has to come back to the Dharana and he has to meditate on Virat Rupa and then purify the heart. And then once again do the meditation on the Paramatma. And then finally reach to the Samadhi, Brahman realization. Then from there onwards, we are hearing that there are two different ways to leave the body. So after coming to the Brahmarandra, Jivatma, so that practitioner, he may just go without, that means leaving his subtle body there itself, and he can go directly and merge into the Brahman. That is a one mukti, that is known as Sadhya Mukti. And there is another mukti is go to the, keep the subtle body along with him, all the senses, and go to the different higher planets step by step. And so first which loka he goes? Vaishwanar loka. Then from there, Shishumala. Then after that, Swarga comes, but he don't go. Then after that, Maharloka he goes, and there he stays some time. Then at the ending of the day, there is a he fire. Fire is there in the lower planets because those are all burnt. So in the Kalpanta. Then after that, so he is at that time he is going up. What are that? Janaloka and Tapoloka and Satyaloka. He is going there and then finally seeing the Satyaloka and seeing the glories of Satyaloka is also glorified there. Then he can stay till the ending of the Brahmaji's life and see and enjoy the Satyaloka's benefits or otherwise. So he can go up. So how he has to go up? What is there on the up on the top of the Satyaloka? No, layers are there. So the different layers are there. Then so first earth will come, Prithvi. There you will be so see so many different objects for the smell and variety of the objects, and those all he so experiencing. Then after that he is going further and leaving the nose sense there itself. That means he will merge that nose sense into the water, and then so in the water he is using the taste tongue actually. That sense he is using and seeing the varieties, and like that one by one layer he is crossing and reaching to the Sahankara. There he will be leaving the completely all the mind, intelligence, everything is left over there. And all the senses also already over. So then, so Mahat in the Mahat Ahankara also emerges, and from the Mahat he came out. That is the last layer of the Brahmanda. After coming out from the Mahat, that means he is now out of the Brahmanda. So there, what is there? Then there is a Pradhana. And then this Mahat also is merged in Pradhana, finish. So he is completely free, and there is a so Jyoti actually. There is a Brahma Jyoti, and there is Karnano Sai Vishnu. Just beside to that Prakriti, Karnano Sai Vishnu is standing, and you can take he is merging into the if he is doing meditation on the Paramatma, he can go and merge into the Paramatma also, or otherwise, if he is interested in the Brahma Jyoti, he can go and merge into the Brahma Jyoti also. Whatever. That means the effulgence of the Karnano Sai Vishnu. Like that, this is a Sadhyo Mukti actually. This is the step by step.
Krama Mukti. This is a Krama Mukti step by step. These are the two different ways. Ete Sruti Te Nrupa Veda Gite. So Tvai Avishte Ha Sanatane Cha. These two are there. So these two paths are there, but compared to these two paths also, ultimately what is the best one? Nahyato Shoha Panta Vishataha Samsrita Viha Vasudevi Bhagavati Bhakti Yogo Yato Bhave. After describing whole thing, what is the purpose? To establish bhakti is superior than this Ashtanga Yogas, two paths. So then finally he said that Bhakti Yoga is a Shivaha. That means it is, Shivaha means what? It is auspicious means it is very blissful and also free from the obstacles. That is the meaning of Shivaha. That we have seen, yes? So then after that, okay, you might be speaking all these things by your own whims. So one may ask, so then he said that, no, it's not my own whims. And this is also established by the Lord. And Lord has studied all the Vedas so 3 times. And then finally he also came to the conclusion that Bhakti Yoga is only the highest. That means his conclusion of studying after studying all the Vedas, what is his conclusion? Ratir Atman Yato Bhave. That means the process which brings the Rati in the Krishna is the highest process. What is that process? That's the Bhakti Yoga. So that Bhakti Yoga is, and after that, that means Rati means here the 5 types of the Ratis in that. So Santa Rati is being described in the 35th sloka. Then after that, to get this Rati, how to do sadhana, that is being said in the 36th sloka. Tasmat Sarvatmana Rajan Hari Sarvatra Sarvada Srotavya Kirtavyascha Smartavya Bhagavan Runa. So that means one should do sadhana bhakti. What kind of sadhana bhakti? Suddha sadhana bhakti. Sarvatmana. He has to, that means completely submit his heart to the Lord. That means Sarvatmana means what it is indicating. Anyavilasha Sunyam and also Gnana Karma Dhanavritam. That means in the heart there should not be space for anything else. That means our faith should not be there in any other process. And also we should not desire anything other than the pleasure of the Supreme Lord. So such a consciousness one should have. With that consciousness one should so hear and chant and also remember the Lord. And then so by that what will happen? Then one come to the stage of the Rati. Then at that time he is not going to hear the past tense, but he is going to drink it. So yes, so drinking of this is said in the 37th sloka. So that means he will be reaching to the Rati stage. Like that, second chapter is over. Then after that, Sukadeva Goswami is also defeating already 3 minutes extra. So Sukadeva Goswami is already defeating that. All the worshipping of the demigods also no use. Because ultimately anyone worship the demigods, they also should come to the worship of Krishna. The way how? By associating, by getting the Adrichika. That means so causeless mercy of the Vaishnavas. So they should get that. And then they also should come to the bhakti, then only they are successful, that is auspicious for them. Otherwise, there is no use of the worshipping the demigods. And for anything, if intelligent man then he is a subuddhi, then what he will be doing? Akama sarvakamova moksha kama udaradihi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. So udaradihi means what we learned here. Udaradihi means subuddhi. And mandabuddhi will be worshipping devatas, demigods. Subuddhi is going to worship the Supreme Lord, even he is having any kind of desires. Next, this is the ultimate actually. Etavanev ejitamiha nisre sodayaha bhagavat yachalo bhavo bhagavat yad bhagavat sangataha. Bhagavata sangataha. So by association of devotees, the demigods should get the association of devotees and they also should come to that bhakti. Like that, he said, and finally, who is saying these are all? So Sukadeva Goswami is saying to Parishit, and that is being said by Sota Goswami to Saunaka Rishi. Sota Goswami gave the little gap, assume that. Then Saunaka got excited actually. Oh, you already said so many things nicely, so we want to hear more. And he is glorifying the person who is not going to hear Krishna Katha. He is saying that he will be glorified by 4 animals. Who are those? The dog, camel, the dog, hog, camel, and ass.
So all these going to glorify him so much actually. The one who is, and also he said that then after that, so Sonakrushi is saying that such a person, even the limbs, each and every limb is also useless until unless if he is not engaged in devotional service of the Lord. So like that he expressed his eagerness to hear the Krishna's pastimes. That is going to end the third chapter. Then after that, in the fourth chapter, so the Goswami is so started replying. So the Goswami is replying that. So it means how further, that means Sukadeva goes, Parishit Maharaj is asking questions. That is being said by, that means further continuation of this prasanga of the Sukadeva Goswami, conversation of the Sukadeva Goswami and Parishit Maharaj is being continued by Sutta Goswami to Sanakad Rishis. So Sutta Goswami is saying, Parishit Maharaj asked further questions. What questions he asked? भूय एवाविविच्यामि भगवानात्ममायया यदेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः. So, my dear Gurudev, I want to know how this law, how Lord is creating this entire universe. This is the second question asked by Parishit Maharaj. First question is Mriyamanasya. That is the first question. Of course, in between the some question came that's about the Virat meditation. Anyway, that if you don't consider, so then is the second question. Why suddenly? That means already Tasmat Bharata. He is saying that in the second, in the first chapter, Sukadeva Goswami said that hearing the Hari's pastimes are important and that should be done. Then why Sukadeva Parishit Maharaj is asking to know about the creation? What is the reason? What we discussed? Ah. And now he is asking about the creation, how the yes. I want to know how my yes, yes. Yeah, we are all, that means sleeping in the lap of Maya. And that's why, so whoever is sleeping in the lap of Maya, they should hear. So by hearing the stories about the Maya, Vahina taptamangam vahinaiva shanti. If our skin is burned by the fire, then how to cure that? That will be cured with the fire itself. You have to burn once a day. So this is the Ayurveda technique actually. If someone's hand is burned by the, or skin is burned by fire, then he has to apply such a heat so that it can be cured very easily. Of course, it is a technique of the Ayurveda, and we may not be knowing, but this is the rule actually. So someone is sleeping in the Maya, and he should be wake up when he hear about the Maya. Otherwise, one will be keep on sleeping. So that's why the how the Lord is performing his various pastimes through the mind. So this is being discussed. That's why this is very important for the practitioners, and that is the opinion of the Parishit Maharaj. Parishit Maharaj is also thinking that. So let me hear this about the Lord's inferior energies activities, how she is doing, how she is creating, and what is this, how the whole creation came. So, and how Lord is playing with this energy. Let me know this. So that my heart will be prepared to hear the sweet pastimes of the Lord. So let me hear this first. And that is the opinion of the Parishit Maharaj. Even Sukadeva Goswami didn't reject this question and he answered. That means that is also same opinion of Sukadeva Goswami also. Both are establishing that the beginners has to hear the Srishti Leelas of the Lord and how Lord is playing the material energy and how he is doing the various creations. That has to be known so that our heart will be prepared to, otherwise we will be strucking, our consciousness will be strucking to the some objects of this Maya and we'll be getting attracted and we are not able to come out from that actually. And then when we hear this, everything is the creation of the Lord's inferior energy, then that will take out our consciousness from there, and so we'll be fully waken up to, our heart is ready to hear the sweet pastimes of the Lord. So that's why he asked this question, how this creation done and how he is maintaining and how this is destroyed and what different shaktis, energies is using.
So yam shaktim upasitya purushakti parahuman atmanam kridan karoti cha. How he is doing the primary creation and how he is doing the secondary creation. So like that questions are being asked. Then after that, Sukadeva Goswami started replying directly. No, before that he is doing praise, offerings to his Hari and Guru, both. And he glorified Hari and Guru. And finally, what he said while glorifying the Hari, he said that, my dear Lord, you should be so like how you are so causing Brahmaji to speak the Vedas. That means the Vedas are coming from the mouth of Brahmaji because of your inspiration only. Same in that way, by your inspiration only, I should speak now. And also in each and every speech, you should be there. So in each and every word, you should be there and make this existence for that and make that so worth enough to the listener. So like that, he is praying there, and finally he prayed to his guru also. Then fifth chapter begins. Okay, fifth chapter will, and also one more thing. The main point I forgot. So Sukadeva Goswami said that, Parikshit, I will answer your question by the conversation, by telling to you the conversation between Brahmaji and Narad. Because how you ask the questions, in the same way Narad Muni also asked the questions to his father Brahmaji. So let us discuss these conversations so that same conversation is going to answer all your questions. So like that, to answer the questions whatever asked by Parikshit Maharaj in this fourth chapter are being answered in fifth chapter, sixth chapter, and seventh chapter. Then after that, once again Parikshit Maharaj will ask the questions so that Bhagavatam is expanded actually. Whenever he asks questions, then it's further expanded. So once again he asks in the eighth chapter of the second canto. And to answer those questions, so much actually, all other cantos will come. Many questions he asked in the eighth chapter of this second canto. Okay. So now let us see the answers for Parikshit Maharaj's questions. You are all ready for that? Yes. Feeling drowsy? Because morning sadhana so much. I think little rest they you all could have taken method of that. Huh? You want 10 minutes sleeping over? It will be very nice huh? In the class. Green share. Huh? Green share. Huh? Green share. Oh, acha, now I'm not saying to that. Thank you, Prabhu. YouTube live. Yeah. YouTube live running. So that I don't need to upload once again. Okay, what are the questions asked by Narada to his father? We have to hear. What are the questions asked by Parikshit Maharaj? Creation. Huh? How Lord is creating this universe, and then after that, how he is maintaining and how he is destroying, and what are the different energies he is using. Okay. So let us see what are the questions asked by Narada. Same or not? It was also same. First sloka of the fifth chapter. Narada Uvacha Deva Deva Namastestu Bhuta Bhavana Purvaja Tatvijani Yajnanam Atma Tattva Nidarshanam. Translation someone. Narmuni asked Brahmaji, O chief amongst the demigods, O firstborn, living entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. Please tell me that transcendental knowledge, which specifically direct one to the truth of the individual soul and the super. Thank you.
But Narada Muni asked, Deva Deva, O chief among us, the demigods, O firstborn living entity, I beg to offer my respectful obeisances unto you. Please tell me the transcendental knowledge which specifically directs one to the truth of the individual soul and super soul. इधर एक बात हम बोलूंगा पहले से ही कि नारद मुनि ऐसा पूछते हैं कि सब जानते हुए अनजान की तरह पूछते हैं। ऐसे पूछने की मतलब क्यों? मतलब क्या है? ऐसे पूछने की मतलब है तो बाकी सब लोग भी मैंने बहुत लोगों ऐसा अभी नारद मुनि जैसा अनजान से पूछ रहे हैं वैसा ओपिनियन बाकी लोग को भी रहे और उन लोगों को याद दिलाने के लिए अभी इधर ऐसा पूछते हैं। अभी ये भाव आप लोग मन में रखिए, वो अनजान होकर क्या क्या पूछ रहे हैं हम आगे देखेंगे। चलिए ठीक है। Purport: the perfection of the parampara system or the path of disciplic succession is further confirmed. Further, Narada Muni is learning from Brahmaji. This is establishing our parampara. So he is having the history actually. It's not whimsically said parampara. In the previous chapter, it has been established that Brahmaji, the firstborn living entity, received knowledge directly from the Supreme Lord. And the same knowledge was imparted to Narada, the next disciple. So Narada asked to receive the knowledge, and Brahmaji imparted it upon being asked. Therefore, asking for transcendental knowledge from the right person and receiving it properly is the regulation of the disciple succession. This process is recommended in the Bhagavad Gita, the 4.2. The inquisitive student must approach a qualified spiritual master to receive transcendental knowledge by surrender, submissive inquiries, and service. Knowledge received by submissive inquiries and service is more effective than knowledge received in exchange for money. Kanashaloga. In the Kali Yuga, actually, people they'll be teaching Bhagavatam and giving the knowledge for the money. But Prabhupada is condemning no money. So money should not be taken. Brahmanas, that means Prabhupada especially says that one should not, should not fix the deal. I will give this much money and you should give this much money, then I will teach this much. So this kind of, so deal one should not keep. It's not good actually. And Prabhupada condemned this. And also there are the conversations on this. Education should be given freely. And knowledge should be given freely. A spiritual master in the line of disciplic succession from Brahma to Narada has no demand for dollars and cents. A bona fide student has to satisfy him by sincere service to obtain knowledge of the relation and nature of individual soul and super soul. Next, yadrupam yadadhishthanam yata srustamidam prabho yat samstam yat param yatcha tattvam vada tattvataha. Yeah, someone. My dear father, please describe factually the symptoms of this manifest word. What is its background? How is it created? How is it conserved? And under whose control is all this being done? There are 6 questions are being asked by Narada Muni here. Yadrupam, yad adhishtanam, yat srustam, yat samstham, yat param, yatcha. Total 6 questions. These 6 questions are being answered in the 5th chapter and 6th chapter. And also further 4 more questions are going to come. So we are seeing here these 6 questions meaning is first one is yadrupam. Yadrupam means either in this sloka idam means what? This material world. Whenever you see idam means this material world or this material universe. Idam Vishwam. Yadrupa means
First question, Yad Rupam. This is the maybe in the exams also they ask this. Yad Rupam. Yad Asya Lakshanam. That means what is the Lakshanam of this material world, material universe? Lakshana means characteristic. What is the characteristic of this material universe? Second is Yad Adhishthanam. Who is shelter for this universe? Who is the shelter? Third question is Yatah Srishtam means by whom it is created. Fourth question is Yat Samastam. That means in which it is going to merge. That means it is that means it is destroyed and being merged into whom? In whom? That means Esmin Liyate. And fifth question is Yatparam. Yatparam means Yasya Adhinam. That means on whom it is dependent. So on whom it is dependent. Otherwise, under whose control it is now. Yasya Adhinam. Next, Yacha means Yadatmakam. So what is there in this universe? It is filled with what? Yadatmakam means it is filled with what? Like this, 6 questions are being asked. First one is, what is the characteristic? Second one is shelter. Third one is by whom it is created. Fourth one is in whom it is going to be merged. Fifth one is On what it depends. on whom it is dependent. So who? Next, sixth one is What compose? so what is the composition of this universe? Composition of this universe. That means what elements are there in this? Is composed of what? Yadatmakam. These things, my dear father, you say all these things. Yatha yatharthyam tatvatah vala. That means you say these all tatvatah. That means as it is, without any so adding or subtracting. So please tell me tatvatah. Next sloka. Okay, that is one part. The inquiries by Narada Muni on the basis of factual cause and effect appeared very reasonable. So the atheist, actually, the next coming 2-3 purports are important, and this is okay. But next purport, third and fourth purports will be reading. Sarvam he tadbhavan Veda bhuta bhavya bhavat prabhu. Sorry. Sarva he tadbhavan Veda bhuta bhavya bhavat prabhu. Karamalakavat vishwam Vignanavasitam tava. Translation. My dear father, all this is known to scientific because whatever was created in the past, whatever will be created in the future, or whatever is being created at present, as well as everything in the universe is within your grip, just like water. Sarvam hi etat bhavan Veda. You know the answer for all my questions. Bhuta, Bhavya, Bhavat. Whatever was there, what is and now is there, and what will be there in future, everything you knows. How he knows? So he is giving an example. Kara amalakavat. Kara means hand, in the hand, holding the one walnut, or otherwise you can say amla. So how it is so easy, na? Is it any difficult to hold the amla in the hand? It's not at all difficult. Holding some 50 kgs, it will be difficult, na? So, but amla is so easy. In the same way that holding an amla in the hand is how it is so easy. That means so easy. And same way, answers of all these questions are very easy. And you know very easily and nicely of all those. And Vijnanavan. Vijnana avasitam tava. So you know all these things. So please explain to me. Brahma, the direct creator of the manifested universe and everything within the universe, he therefore knows what happened in the past, what will happen in the future, and what is happening at present.
Three principal items, namely the living being, the phenomenal world, and the controller, are all in continuous action, past, present, and future. And the direct manager is supposed to know everything of such actions and reactions. As one knows about a walnut within the grip of one's palm. So this is an example actually. The direct manufacturer of a particular thing is supposed to know how he learned the art of manufacturing, where he got the ingredients, how he set it up, and how the products in manufacturing process are being turned out. Because Brahma is the first born living being, naturally he is supposed to know everything about creative functions. That is the expectation. Narad Muni is thinking that Brahmaji is knowing everything. He is the first person according to his knowledge, and he knows everything. And further, he is saying, Yad Vignano Yad Adharo Yad Paraswam Yad Atmakaha Ekaha Srijasi Bhutani Bhutairevatma Mayaya. Next. My dear Father, what is the source of your knowledge? Under whose protection are you standing? And under whom are you working? What is your real position? Do you alone create all entities with material elements by your experience? Further, four more questions. Yad Vignano Yad Adharo Yad Paraha Yad Atmakaha. By whose knowledge you are able to do this? Because you are the first person, you are only doing the creation. And Yad Adharaha. So here it is saying that who is the shelter? Who is the shelter for you? Who is the shelter for you? That is in the previously also we have seen. So there shelter for universe. Here shelter for you. Who is the shelter for you? Yad Vignanaha. Yataha Vignanam Yasya Saha. किनसे आप विज्ञान प्राप्त करके ये सृष्टि कर रहे हैं? मैं आपको विज्ञान देने वाला कौन? यद आधारहा, और आपका आश्रय कौन है? यद परहा, और आप किसकी अधीन में हैं? यदात्मकहा, और आपका आत्मा कौन है? ऐसा पूछ के आधा श्लोक में उसके बाद बोल रहे हैं कि ये कहा, व्हाट इज से ये कहा सृजसी भूतानी भूतैरेव आत्म माया। इसके बाद बोलते हैं कि पिताजी वो तो आप ही लग रहे हैं, आपका विज्ञान का कारण आप ही है, आपका आधार आप ही है, और आपका ही अधीन में है, और आपका आत्मा आप ही लग रहा है मुझे, ऐसा बोले। एक्चुअली ये कहा मानी इधर अर्थ क्या है, आप लोग ऐसे लेना चाहिए कि तो आप खुद पहले तो 6 क्वेश्चन पूछे हैं, ये विश्व का कौन है, मैंने किससे लक्षण क्या है, और आश्रय कौन है, किन से बनाया गया, और क्या, और किस में लीन हो जाता है, और उसमें वो किसके अधीन में है, और किससे बना गया है। ये प्रश्न पूछने के बाद तो नारद मुनि क्या बोल रहे, तो वो तो मुझे लगता है कि आप ही बनाए, ये बोले है ना। तो करामलकत विश्वम विज्ञानवान, तीसरा श्लोक में क्या बोले हैं, ये सब कुछ आप जानते हैं, आप ही तो सबसे नंबर 1 जीवात्मा है, इसकी अर्थ आप ही बनाए हैं। तो ऐसा बोल के तीसरा श्लोक में, चौथा श्लोक में क्या बोलते हैं, तो आपका ऐसा विज्ञान जो भी चाहिए ना इसको बनाने के लिए, उसका विज्ञान का कारण कौन है, और आधार कौन है आपका, और आप यत परहा, माने आप किसके अधीन में हैं, और आपका आत्मा क्या है, मुझे लगता है वो तो आप ही है। ये कहा सृजसी भूतानी भूतैरेव आत्ममायया। पिताजी वो तो आप ही लग रहा है पूरा सब कुछ करने वाला, तो ऐसा बोले। हाँ, सीधा ही बोल देते कि भाई आपको किसने ज्ञान दिया, इतना अलग टेढ़ा से क्यों? मैंने डाउट है ना। हाँ, तो उनको थोड़ा सा डाउट है हृदय में, मुझे लगता, लेकिन उनका तो कंफर्मेशन है तो आप ही बनाए, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी है।
मम तु त्वमेव स्वतंत्र परमेश्वर इति बुद्धि। मेरा विचार के अनुसार तो आप ही परमेश्वर है। एक मन ये अर्थ हो रहा है। तो तव तपश्चरेण परशंका पृच्छामि इत्याह सार्थैः चतुर्भिः एक असायः। एक माने इधर अर्थ क्या है? आप अकेला बना दिए, माने इसकी अर्थ आपको किसी का मदद नहीं मिला है और आप अकेले बनाए हैं। क्या हुआ इसका? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। तो नारद जी बोल रहे हैं कि पिताजी आप ही बनाए हो सकते हैं सब कुछ। पर देखिए, it was known to Sri Narad Muni that Lord Brahma attained creative energy by undergoing severe austerities. As such, he should understand that there was someone else superior to Brahma who invested Brahma. Yes, this is fifth or fourth. Huh? Huh. Brahma who invested Brahma superior to Brahma who invested Brahma with the power of creation. Therefore, he asked all the above questions. So, discourse of progressive scientific achievements and therefore not independent. The scientist has to attain knowledge of thing already existing. प्रभुपा जी क्या करते हैं ना, वो सस्पेंस मेंटेन नहीं करते, तो आंसर बोल देते हैं। इसलिए आपको वो एक्साइटमेंट नहीं आता है जो उन्हें भ्रमित नहीं करते हैं, सीधा आंसर लिख डालते हैं। तो इधर ऐसे इधर इधर तक तो जो भी हम लोग देखेंगे नारद मुनि जो पूछे हैं उसी के अनुसार तो नारद मुनि का पूरा का पूरा ब्रह्मा जी ही बना दिए करके कंफर्मेशन नहीं है। तो ब्रह्मा जी का विचार है कि सॉरी नारद मुनि का विचार है कि ब्रह्मा जी बना दिए हो सकता है, क्योंकि यही पहले जीव है तो इनकी पहले तो कोई है नहीं, तो इसके मतलब है कि यही सब कुछ किया हो सकता है ना। तो कोई है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी है ऐसा करके इस भावना चल रहा है अभी तक ये चौथा श्लोक तक। लेकिन परपट में तो प्रभु जी तो जो आगे बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी नारद मुनि बोलते हैं कि लेकिन पिताजी ये सब तो आप ही लग रहा है, लेकिन फिर भी हमको एक डाउट आ रहा है। तो क्योंकि आप तो तपस्या किए हैं, माने इसका अर्थ क्या है? तपस्या किए माने इसके अर्थ आपके ऊपर और कोई है क्या? ऐसा वो डाउट उधर व्यक्त की, लेकिन प्रभुपा जी उसका आंसर इधर डाल दिए। तो चलिए हम लोग सस्पेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अभी फिफ्थ श्लोक पढ़ेंगे। माने थोड़ा सा माने आपका विज्ञान का कारण कौन है, आपका विज्ञान आपका आधार कौन है, और आप किसकी अधीन में हैं, और आपका आत्मा कौन है, सब पूछ के एक सृष्टि माने आप एक माने आपको कोई और सहाय देने वाला नहीं है, मुझे लगता है आप ही हैं करके ऐसा बोल दिए चौथा श्लोक में, फोर्थ श्लोक में, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ श्लोक में क्या बोलते हैं देखिए। आत्मन भावय सेतानि न परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य पूर्णनाभेरिवाल क्लमः। ट्रांसलेशन। As the spider very easily creates the network of its own web and manifests its power of creation without being treated by others, so also you yourself, by employing movement of your self-sufficient energy, create without any other's help. Here is clearly saying, na? Now he is saying very clearly. पूर्ण नाभि मकड़ी, मकड़ी के लिए घर बनाने के लिए जो जाल बनाने के लिए जाली तो किसी से ला के आते हैं क्या? पदार्थ नहीं है ना, अपना पीठ से निकालते हैं और खुद बनाते हैं। मेटीरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज दोनों, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों खुद ही है। तो मुझे लगता है पिताजी आप ही बनाए, ये कंफर्म कर दिए इधर तो, क्योंकि पूर्ण नाभि जैसा मकड़ी अपना जाल को खुद
तो बनाती हैं, कहीं से नहीं लेती हैं मटेरियल, जो चाहिए वही चाहिए। आप भी, ये पूरा सृष्टि के लिए जो जरूरी शक्ति है वो सभी आप ही का है, और बनाने वाले भी आप ही है। आत्मशक्ति अवस्तभ्य, आत्मशक्ति माने खुद का शक्ति से ही बना दिए हैं। पराभावयन स्वयं, माने स्वयं माने अकेला आप। आत्मन भावय से, मैं ऐसा मानता हूं, तो आत्मन भावय से तानि पराभवयन स्वयं आत्मशक्ति अवस्तभ्य। एग्जाम्पल भी दिए हैं, ऊर्ण नाभिरिवा, जैसा मकड़ी की जैसा। सो प्रभुपाद जी पर्पट में बोलते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी, तो माने किसी के ऊपर आधारित नहीं, जैसा सेल्फ सफिशिएंट स्वयं प्रकाश और स्वयं शक्तिमान माने यही वर्णना भी। एग्जाम्पल भगवान के लिए भी, सोपादान कारण निमित्त कारण दोनों भगवान है करके बोलने के लिए भी हमको वर्णनाभि का एग्जाम्पल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। ना हम वेद परम ह्यस्मिन् ना परम न समम विभो नाम रूप गुणैर्भाव्यम सतसत्किंचिदन्यतः। ट्रांसलेशन। Whenever we can understand, Whatever. whatever we can understand by the nomenclature, characteristics and particular things, superior, inferior, or equal, eternal or temporary, is not created from any other source other than that of your Lordship, now so great. माने जितना भी संसार में देख रहे, जो अच्छा है, जो बुरा है, जो बीच का है, कुछ भी है, जो भी किसी का नाम है, वो सब कुछ आप ही बनाए, सब कुछ आप ही बनाए। तस्मात् अहम तु आत्मन जगति परम उत्तमम अपरम अधमम समम मध्यमम च तत्रापि नाम मनुष्यादि रूपम द्विपदत्वादि गुणः शुक्लत्वादि तैः भाव्यम साध्यम तत्रापि स्थूलम सूक्ष्मम किंचिदपि अन्यतः न वेद किंतु त्वत्तः एव सर्वः भवति इति मन्ये। पिताजी मैं ऐसा सोच रहा हूं कि इस जगत में जो उच्च पदार्थ हैं, नीच पदार्थ हैं, मध्यम पदार्थ हैं, जो भी जिसका नाम है, जो सूक्ष्म है, जो स्थूल है, जिसका रूप है, जिसका गुण है, सब कुछ आप ही बनाए। मुझे नहीं लगता है कि आपसे अतिरिक्त और कोई बनाए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? नारद मुनि तो सिद्ध देह को प्राप्त किए या नहीं? फर्स्ट कैंड में हम लोग दिलाए या नहीं दिलाए नारद मुनि को सिद्ध देह, है ना? 6 चैप्टर में आ गए हैं नहीं सिद्ध देह, याद है आप लोग? तो ऐसा सिद्ध देह प्राप्त किए, लेकिन फिर भी भक्ति को प्रचार करने के लिए ब्रह्मा जी का पुत्र होकर तो वापस इधर तो अवतार लिए हैं, भक्ति आवेश अवतार। तो ऐसा नारद मुनि इतना भक्ति जानने वाले, ये कुछ नहीं जानते, अनजान के जैसे सब कैसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी सब कुछ बनाए करके? तो कारण क्या हो सकता है? Others may also be thinking on the same. हाँ Not that Brahma ji himself is that. हाँ, तो others might be thinking that others are like Brahma, like Narada Muni. Actually, Narada Muni is imitating. Actually, he is just imitating that. So some people in this universe are thinking that Brahma ji is only the ultimate creator. So just he is showing. So people are also can think like this. And now Brahma ji is going to clarify that himself. Then the means establishment of the Supreme Lord will be पक्का रहेगा। विपरीत भावना माने हो सकता है ब्रह्मा जी भी बनाया, हो सकता है ये जो है ना, वो हो सकता है खत्म हो जाएगा। यही उद्देश्य है। तो आगे बढ़ेंगे। समझ ना? सभवान अचरघोरम यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंखां च यच्छसि। ट्रांसलेशन। If we are moved to wonder about the existence of someone more powerful than you, that when we think of your great austerity in perfect discipline, although your good self is so powerful in the matter of creation. थैंक यू ब्रो। ये क्या बोले इतना, अभी तक तो इतना प्रशंसा कि आप ही सब कुछ,
लेकिन पिताजी एक डाउट आ रहा है हमको, क्या है कि आप भी तपस्या करते क्यों? तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली सब कुछ आप ही थे तो कोई तपस्या करने की जरूरत है? भगवान कोई तपस्या करते हैं गोलोक वृंदावन में? श्री कृष्ण भगवान करते हैं कुछ? कोई तपस्या नहीं करते। क्या करते हैं? जब सब कुछ उन्हीं के पास रहते हैं तो वो कभी तपस्या करने की जरूरत पड़ता है? नहीं है ना। तपस्या कर रहे हैं माने इसके अर्थ, और कोई भी किसी के ऊपर उपासना कर रहे हैं, किसी को उपास्य बना के उनके पीछे ही चले हैं ये, उनके उनको प्रसन्न करके इस तपस्या से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, माने कुछ प्राप्त करने के लिए अभी भी तो उनका प्रयास है, माने इसके अर्थ उनके पास सब कुछ नहीं है। यही सिद्ध होता है ना तपस्या करना माने। तो ऐसा तो पिताजी आप सब कुछ है, आप सब कुछ बनाते हैं, कि मुझे एक डाउट आ रहा है आप क्यों तपस्या करते हैं? तो ये बात है। तो इसी संदर्भ में तो मैं अपना नारद मुनि अपना शंका को व्यक्त कर दिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपुट में, फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ श्री नारद मुनि, one should not blindly accept his spiritual master as God himself. नारद मुनि तो भगवान की जैसे तो पहले अप्रोच किए हैं, लेकिन डाउट भी व्यक्त किए हैं। A spiritual master is duly respected on a par with God, but a spiritual master claiming to be God himself should at once be rejected. Actually, before accepting him, one should test him. Actually, Narada Muni accepted Brahma as the supreme due to Lord Brahma's wonderful acts in creation, but doubts arose in him when he saw that Lord Brahma also worshipped some superior authority. The supreme is supreme, and he has no worshipable superior. The Hangrahopasita, or the one who worships himself with the idea of becoming God himself, is misleading. So, but the intelligent disciple can at once detect that the supreme God doesn't need to worship anyone, including himself. कोई बोल सकते हैं ना, नारद मुनि सॉरी ब्रह्मा जी अपने आप में मेडिटेट कर रहे थे, प्रभुपाद जी उसको भी खंडन कर रहे हैं। चलिए, ऐसा कैसा, क्या जरूरत है? यदि कोई सुप्रीम होते तो अपने आप में भी क्यों वो मेडिटेशन करेगा? क्या जरूरत है? तो उनका अपने आप को वर्शिप भी क्यों करेगा? क्योंकि कोई भी सुप्रीम होते हैं तो वो कभी भी किसी को भी वो किसी का उपासना नहीं करते हैं। ये बात बोले है ना अभी। बट द इंटेलिजेंट डिसाइपल can at once detect that the Supreme God doesn't need to worship anyone, including himself, in order to become God. Ahangohopasana may be one of the process for transcendental realization, but the Ahangoropasita can never be God himself. So no one becomes God by undergoing a process of transcendental realization. Narada Muni thought of Brahmaji as the supreme person, but when he saw Brahmaji engaged in the process of transcendental realization, doubts arose in him. So he wanted to be clearly informed. Yes, Prabhu. Yeah. Yeah. But not in the Vrindavan. Yeah. He will be so meditating on his devotees, only just to see their pastimes. And Lord doesn't need to get anything. He is Atmaram. So that means he is dwelling with his own energies. So, but here meditation will not be done. Lord is not doing the meditation like the way others they do. You become Lord. Austerity is wrong. Yeah, austerities are not there. Tapasya, tapa is not there actually. Yes. There is mentioned in the purport Yes, bro. that Anupasana may be one of the process for transcendental realization. Yes, bro. Ahambrahopasana, Pratikopasana, and Visvarupopasana. So in the Bhagavad Gita, it is said that they also give the liberation. And worse than that is demigod worship, which is not going to be any liberation. But how can they achieve if they meditate on themselves? Yeah. How can they achieve transcendental? They can, so if they meditate themselves as a Lord, and because of that, they will be getting the Sarupya Mukti.
And yes, so they are seeing them, or otherwise, if some bhakti is there, then Sarup Mukti they'll get. Otherwise, they go and merge into the form of the Lord. And that is the one liberation. But here with Agropasana is meditating on self as the God. Here meditating on self as God. So, yeah, like that only. Angrapasana means, so he's thinking himself as a Lord and meditating on that. That can only be when he meditates himself as Brahman. No, no. So that is a plausible, that is true in the case of Brahman realization also, and also to merge into the Lord. This is also one of the meditation. In the Bhagavad Gita, we see this in the 9th chapter. Ekatvena, Pratatvena, and Bahutvena. So Ekatvena means, yeah. So he is seeing himself as Lord and meditating like that. So example is Poundrak, and they will be getting the liberation. The like Sahaj Mukti in the Brahman, not in Brahman, in the Lord they will go and merge. But when he was killed, he got killed. Otherwise, there was no possibility for him to. Yeah, because of this meditation, is being killed. So there, our Acharya also says, so Ekatva, Bahutva, and Prathatva and Bahutva. So worshipping is not pure devotional service, because 9th chapter is discussing about the pure devotional service in the Bhagavad Gita. So, but some are there, some kind of worship is there, but this is not recommended. And but by this they are going to get the liberation. But worse than this is demigod worship. Ye Pyanya Devata Hajanti. Then he will says that. So next, 8th. ये तन्मे पृच्छतः सर्वम् सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यतैवेदम् अहं बुद्ध्येनुशासितः. Translation. They all that I have employed from kindly instruct me, so that I may be able to understand it as much to them. पृच्छतः मम एतत् सर्वम् अभिप्रेतं वस्तुअर्थः विशेषेण जानि. So you know all these things very nicely. Tell me, so you are the Supreme Lord, or there someone else is there? And who did the creation of this material universe? And if you are doing, then who is giving the knowledge for you that? And who is the shelter for you? And who is the on whom you are dependent? And also who is your heart? So like that, who is your Atma otherwise? So like that, he is expecting answers for all these. पिताजी ऐसा एक्सप्लेन करिए कि जैसे मैं समझ सकूं, है ना? किंच यथ एव इदम अनुशासितः सन अहम बुद्धि सम्यक अवगच्छामि. सम्यक माने मैं अच्छे से समझ सकूं, ऐसा एक्सप्लेन करिए. क्योंकि ये तो बहुत इधर उधर ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स आने वाला है. इसीलिए तो हम लोग भी थोड़ा सा तैयारी रहना है, और भी सोचने की अच्छा मूड बन जाएगा अभी आगे. तो क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर आता है ना, तो ये एलिमेंट वो एलिमेंट ये सब सुनते ही तुरंत हम लोगों को रुचि नहीं है. तो ये सब अर्जुन को जो ऐश्वर्य रूप देखने की इच्छा नहीं हुआ ना, विराट रूप ऐश्वर्य रूप, तो कारणानुसार विष्णु. तो ऐसा ही हम लोगों को भी सृष्टि लीला में इतना रुचि नहीं होता है एक्चुअली. तो लेकिन होना चाहिए. पता नहीं ये स्लीप, ये जो आगे जाकर बोलते हैं विश्वनाथ जी, तो जो शुद्ध भक्त हैं, जो रति भक्त हैं, वो भी सृष्टि लीलाओं को आस्वादन करना चाहिए, सुनना नहीं, आस्वादन करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं. सेकंड कैंटो 10th श्लोका 10th श्लोका समवेयर. सो 10th chapter actually, second canto 10th chapter. ओके. तो तब ये सभी सुनने के बाद ब्रह्मा जी बोलते हैं, तो उत्तर देने की बारी आ गया अभी. ब्रह्मोवाच
सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितम् यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने। Lord Brahma said, "My dear boy Narada, being merciful to all, including me, you have asked all these questions because I have been inspired to see into the previous of the Almighty, sorry, prowess of Almighty personality of God." बहुत अच्छा किए नारद, आप हमारे ऊपर कृपा किए हैं। क्या बोल रहे हैं? कृपा किए हैं। पिताजी हैं तो समझ के आप मेरे प्रति कृपा किए हैं। ये वत्सा, हे पुत्र, आपका संदेह भी सही है। विचिकित्सितम माने इधर शंका व्यक्त की है ना। क्या शंका व्यक्त की ब्रह्मा नारद ने? लगता है सब कुछ आप ही बनाए, ऐसा मकड़ी जैसा। माने मकड़ी अपने से किसी की आधार ना रखकर सब कुछ बनाती है ना, वैसा आप ही बनाए, आप ही की शक्ति से। फिर भी थोड़ा सा डाउट आ रहा है। क्या है कि आप तपस्या क्यों किए? तपस्या किए माने इसका और कुछ है क्या? तो गड़बड़ है लग रहा है। तो उसको सुनने के बाद ब्रह्मा जी क्या बोले थे? तो सम्यक, बहुत अच्छा है। विचिकित्सितम, आपका संदेह समीचीनम। ऐसा नहीं कि तो मुझे सब कुछ ये तो जानते नहीं ठीक से, तो चलो अभी हमें भगवान बन जाए इनको। ऐसा चीटिंग नहीं की है एक्चुअली। तो और उसका प्रश्न सुनने के बाद नारद मुनि का विचार ब्रह्मा जी क्या है मानसिकता? कारुणिक इति, कारुणिकस्य इति सर्वज्ञेनापि त्वया एवं पृच्छिता मयि पितरी करुण एव। ये करुणा है बोलो। कैसा करुणा हो गया? प्रश्न पूछना भी करुणा होता है क्या? प्रश्न पूछना कैसा करुणा हो? वो तो जानते नहीं पूछा, तो उसमें क्या करुणा? क्या उनका अपेक्षा है? वो तो अपेक्षा होता है, नहीं तो करुणा होता है। अपेक्षा होता है मैंने कुछ चाहिए, इसीलिए कोई भी आपका आके कुछ मांगा तो वो करुणा होता है क्या? वो तो बेगर है। तो इसके लिए इन्हें करुणा बोला जाए। कौन बोला करुणा है करके? ब्रह्मा जी करुणा क्यों बोल? ये तो, अरे नारद मुनि जानते नहीं, नहीं जानते जो नहीं जाने वो चीज को पूछना, इसको तो करुणा थोड़ी बोलेंगे। आपको कोई आके नया नया भक्त आके कुछ पूछते तो करुणा होता है क्या? नहीं। हाँ, राइजिंग है। क्योंकि जो जनरल लोग हैं समझ पाए कि एक्चुअली सब कारणों के कारण ब्रह्मा जी है। और मैं बताऊं, मैं एक कि मैं कारण हूं, मैं नहीं कोई और हूं। हाँ, इसको करना समझ नहीं रहे। मैंने दूसरों लोगों के लिए प्रयोजनकारी है, इसीलिए ये करुणा है। हाँ, ठीक है आपका। हाँ, ब्रह्मा जी को आप एक अवसर मिल रहे हैं कि भगवान के बारे में बोले। और लेकिन वो तो करुणा कैसा होगा? वो तो प्रयोजन होगा सबका। हाँ। Brahma also realized that time the lowest by speaking was part. When you glorify your own God, हम्म। that was nothing. नहीं, इधर नारद मुनि ब्रह्मा जी के ऊपर करुणा किए हैं। Narad Muni is a liberated soul. In that way, Brahma. देखिए, कोई भी नहीं जानते कुछ चीज, वो आपके पास आए और पूछ लिया, वो वो व्यक्ति आपके ऊपर करुणा कर रहा है क्या? वो थोड़ी करुणा है। वो तो जानते नहीं, आया कोई आके 4 रुपए मांगा, नहीं तो कोई भिक्षा मांग, तो करुणा होता है। आप दे रहे करुणा एक्चुअली। तो बाजी तर्पण में लिख रहे हैं कि जब भगवान के बारे में ऐसी कथन करते हैं, आपके बारे में दिव्य चर्चाएं करते हैं, इससे पूरा वायुमंडल शुद्ध होता है। वो तो ब्रह्मा जी के ऊपर करुणा नहीं, वो तो दुनिया के ऊपर करुणा। ये ब्रह्मा जी को हेल्प करेगा बाकियों के डाउट को डिस्पेल कर। हाँ। और हमारा मेजर क्या है? तो make me remember that I'm not the creator. That is sometimes we think that I'm the doer. Yeah. The machine.
Okay. There are all answers are right only, but here Karuna, that's why सर्वज्ञेनापि त्वया एवं पृच्छ्यता मयि, माने सब कुछ जानते हुए भी इस प्रकार हमारे प्रति प्रश्न पूछे है ना, ये करुणा है। आपको जरूरत आकर पूछा नहीं। यदि कोई व्यक्ति जरूरत आकर पूछेंगे, मैंने अनजान से पूछेंगे, तब तो वो करुणा नहीं बोला जाता है, वो इनका जरूरी है, अपेक्षा बोला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी पूछना, उसी को बोलते हैं करुणा। समझ में? माने नारद मुनि, पिताजी बोल रहे हैं नारद मुनि से, ब्रह्मा जी, अरे आपको सब कुछ पता है फिर भी पूछ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? करुणा। यदि आपको नहीं पता है तो पूछ रहे थे, तो इसको करुणा बोलते हैं क्या? ये अपेक्षा होता है। इसीलिए इसीलिए बोल रहे हैं करुणा कभी भी क्या होती है? अहित की होती है। करुणा का मतलब मिर्सी, मतलब मैंने कोई भी वो नेचुरल स्वरूप क्या है, कोई भी हेतु नहीं रहता, ऐसे दिया जाता है। तो इधर नारद मुनि क्यों पूछ रहे हैं? चलो, पिता ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि ये नारद मुनि सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, माने उनको जरूरत नहीं कि इन प्रश्नों को आंसर जानना, उनके लिए अवसर, उनके लिए ये जरूरत नहीं है, बल्कि ये करुणा है मेरा पति, इसीलिए करुणा शब्द का ब्रह्मा जी यूज किए हैं। हाँ। How this is must be for Brahma. Someone knows, he asks question. हाँ, So this much is for everyone or for Brahma? एवरीवन एंड आल्सो फॉर ब्रह्मा। यानी तो यदि आपको कुछ जरूरत पड़ के, नहीं तो कुछ आप, कोई आपको 10 रुपए दिए हैं, नहीं तो कोई कुछ हेल्प किए और आप उनको भी हेल्प किए, इसको करुणा बोलते हैं क्या? इसको एक्सचेंज बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। लेकिन कोई भी आप कुछ भी नहीं किए, तब जाकर आप कुछ हेल्प किए, तब इसको क्या बोलते हैं? मर्सी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं मर्सी। माने बिना हेतु का जो भी किया जाता है उसी को मर्सी बोलते हैं। विथ हेतु बोला किया जाए माने वो मर्सी नहीं होता है। तो इधर करुणा और मर्सी इसीलिए कि इधर नारद मुनि को जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानते, सर्वज्ञ है, ये फिर भी पूछ रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो उनका इसी को दृष्टि में रखकर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि ये आपका करुणा है मेरा प्रति। यस प्रभु। But I can understand Prabhupada's purport. It is mentioned that the pure devotees are not satisfied only by knowing everything about the Lord. They are also eager to broadcast this information to others. That is compassion. Yeah, It is purely compassion. yes. So He knew everything, yes, but he wanted to broadcast the glory of the Lord. yes, And Brahmaji get the opportunity to glorify the Lord. yes. So this is Yeah. So this is a karuna. To establish this, how you have to show this is not out of the need it is being asked. That should be established. Otherwise, it will not be karuna. It is inquiry. So that's why here to be karuna, what is the condition? It should be unconditional. ऐसा नहीं ये कोई कुछ प्रयोजन के लिए कुछ कर रहे हैं, माने वो करुणा बोलते हैं क्या उसको? नहीं है ना। तो माने करुणा की नेचुरल स्थिति है बिना हेतु का किया जाने वाली चीज, उसी को करुणा बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी हम जाके भगवान की पुस्तक वितरण करते हैं, तो उसका क्या है? तो करुणा ही है ना। ऐसा नहीं कि हम लोगों को कुछ हमारा रोज रोटी चलता है, ऐसा भाव तो जाते हैं क्या? नहीं। तो बाकी सबको भी भगवान के नाम पहुंचे और भगवान की गुणगान महिमा पहुंचे, तो इस भाव से जाते हैं, इसी को बोलते हैं करुणा। एक्चुअली उनको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी करते हैं, उसी को बोलते हैं करुणा। तो इधर तो करुणा कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो नारद मुनि का करुणा है करके तो ब्रह्मा जी तो बोल रहे हैं, लेकिन आपको तो एस्टेब्लिश करना है कैसा है, क्योंकि इधर ऐसे एस्टेब्लिश किया गया। तो नारद मुनि सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं, तो इससे ब्रह्मा जी को भी भगवान की याद करने की मौका मिल रहा है, और इसके साथ साथ पूरा की पूरा दुनिया को भी ये ज्ञान प्रसारित हो रहा है। तो ये है नारद मुनि का करुणा। उनको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी पूछा, फिर भी एक टॉपिक उठाया, ये है करुणा। सो कारुणिकस्येति सर्वज्ञेनापि त्वयैव पृच्छ्यता मयि पितरि करुणैव।
कृता मन यही करना आपका यद हम विजानीहि इति सो परामर्शार्थक पदेन भगवतः वीर्यस्य विश्वसृष्ट्यादिमयस्य दर्शने विषये प्रेरितः। आप भगवान की महान महान शक्तियों को स्मरण करने के लिए और चिंतन करने के लिए आप प्रेरित किए हैं। ये बहुत बड़ा काम किए हैं आप। ये पिताजी के प्रति आप तो पुत्र की दायित्व नहीं निभाया बल्कि क्या किए हैं, करुणा किए हैं आप। तो तदहम क्षणम मनसैव तत् पश्यामि। तो जब आप ये प्रश्न पूछे हैं तब तुरंत मैं भगवान की शक्तियों को स्मरण करता हूं। स्मरण करते करते क्या होगा, उसी समय पर तत्क्षण मनसैव देखते भी हूं मैं देखूंगा भी अभी। मैं भगवान की लाइव देखेंगे, लाइव देखते हुए बोलेंगे, क्योंकि स्मरण करते हैं, क्योंकि उनका तो रोज का काम है ना। तो भगवान तो शक्ति देते रहते हैं और उससे ये करते रहते हैं, इसलिए डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अभी नारायण मैं तो उसी क्षण जब भगवान की वीरियों की मैंने शक्तियों के बारे में स्मरण करूंगा तो तत्क्षण में मैंने उसी क्षण अहम क्षणम मनसैव तत्पश्यामि, मन से मैं सब कुछ देखूंगा भी। हाँ इति आनंद, मन वो एक्साइट हो गया। वाह, जैसा भी बच्चों मूवी देखने के लिए जाते थे बहुत एक्साइट होते हैं या नहीं, वाह होते तो वैसा। तो इस प्रकार तो जैसा कोई भी एक नया नया चीज, जैसा आप कोई भी नया प्लेस जा रहे हैं उधर देखने के लिए जा रहे हैं तो टूर में तो कैसे एक्साइट होते हैं या नहीं, तो वैसा भी ब्रह्मा जी एक्साइट हो गए। हम लोग एक्साइटमेंट आ रही नहीं आ रही लेकिन ब्रह्मा जी तो फुल एक्साइटेड है, उनका एक्साइटमेंट का कोई लिमिट नहीं है अभी तो क्योंकि भगवान की अलग अलग एनर्जियां कैसा ये पूरा सृष्टि करने वाला है, वो पूरा के पूरा जैसे एक तो हम लोग 3D में देखते हैं उस प्रकार तो देखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट, सो विल रीड द पर्पल। Brahma ji being so questioned by Narada ji congratulated him. For it is usual for the devotee to become very enthusiastic whenever they are questioned concerning the Almighty Personality of Godhead. That is the sign of a pure devotee of the Lord. Such discourses on the transcendental activities of the Lord purify the atmosphere in which such discussions are held. And the devotees thus become enlivened while answering such questions. It is purifying both for the questioners and for one who answers the questions. The pure devotees are not only satisfied by knowing everything about the Lord, but are also eager to broadcast the information to others, for they want to see that the glories of the Lord are known to everyone. Thus, the devotees feel satisfied when such an opportunity is offered to him. This is the basic principle of missionary activities. Missionary means if you want to be a missionary, we should be having karuna. Otherwise, we cannot be missionary. Then we should be to take the one wife and have family and work for them, because then their motivation will come to do the activities. So to get the pleasure. Brahmacharis means he should be. So missionary means brahmachari should be missionary. All the three ashramas are missionaries ashramas. Brahmachari, Grihastha, Brahmachari, Vanaprastha, and the sannyas. They are missionaries. Especially, so brahmacharis, Naistic brahmacharis, and sannyasis are missionaries. That means they are having the karuna. There is no selfishness. So they are ready to all the time. So to give the help to others. So all the what is the best help? Distributing the Krishna consciousness, and this should be the missionary. This should be the motivation actually. Selflessly, he should be going and giving this. This is known as karuna. He should be having this. Then only he'll be missionary. Then only can be this. You'll be fulfilling the criteria for that ashram. Otherwise, no. If we become then selfish, if we in our heart we don't have any idea to extend actually our energies, extend our all the time and energy, and if we are not ready to give the mercy to the world, then we cannot be missionaries. And we cannot be, and we are not worth enough to be in that ashram also. Definitely. There is no conditions actually. Anytime we are ready to so fight to distribute actually.
That should be the motivation. Then for them, this is ashram is suitable. Otherwise, we are selfish. We want something else, and then that means I do this much work and I should get this much kind of benefit. If this mentality is there, like a fruity mentality, karmi mentality, then those fit for the grahasthashram. So, but I am not saying that grahasthas cannot be missionaries, but I am saying that brahmacharis should be missionaries. They may be missionaries, but brahmacharis should be missionary. It should be 100%. Sannyasi means you should be missionary. So, thus the devotees feel satisfied when such an opportunity is offered to him. This is the basic principle of missionary activities. We are ready to take up any service. Any service. It may be the preaching, it may be the cleaning, it may be the farming, it may be the anything. That is missionary. Because which is going to benefit everyone. So we are going to do that. And unconditionally. So then that is a missionary. If we have reservations and conditions, no. But at least we should have heart. Maybe sometimes body may not be fit, but heart should be there. Heart can be done, na? Heart we can give, na? Maybe physical conditions may not, but heart should be there. नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भो अविज्ञाय परं मत्ता एतावत्त्वं यतो हि मे. Translation. Whatever you have spoken about me, not false. Because unless and until one is aware of the God, who is the ultimate truth beyond me, one is zero to be illusioned by observing my form. Whatever you have spoken about me is not false. That means he is the creator. He is accepting Brahman. I am the creator. And until one is aware of the personality of Godhead, and because unless and until one is aware of the personality of, जब तक कोई व्यक्ति भगवान को नहीं जानेंगे तब तक मुझे ही सुप्रीम मानेंगे. वो तो सही है बात. ये बात सही है. तो यस नारद, मुझे सबसे बड़ा बनाते हैं. आप जो बना दिए वैसा लोग भी बनाते हैं मुझे. वो बात सही है. किसके विषय में? जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उन लोगों के विषय में वो बात सही है. हु इज द अल्टीमेट ट्रूथ बियॉन्ड मी. एक्चुअली वो जो भगवान है ना, वो मेरे से भी बड़े हैं, मेरे से भी और आगे हैं, ऊपर हैं. वन इज श्योर टू बी इल्यूशन बाय ऑब्जर्विंग माय पावरफुल एक्टिविटीज. बहुत लोग मुझे मेरा कार्यों को देखकर ही सोचते हैं कि तो मैं ही सबसे बड़ा हूं. आप जो बोले हैं ऐसा होता है. कुछ कुछ लोग ऐसा समझता भी है. किंच बोह पुत्रा एक सृजसी भूतानि. माने इसके पहले बोले ना, तो आपका ज्ञान का आश्रय कौन है और आपका तो आश्रय कौन है और आपका आधार कौन है और आपका आत्मा कौन है. मुझे लगता है आप ही हैं. वो जो बात बोले हैं वो बात सही है ना. कुछ लोग ऐसा समझते हैं मैं ही सब कुछ किया करके. वो बात सही है. क्यों ऐसा समझते हो लोग? क्या कारण है? परमेश्वरी अविज्ञाते सती. क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानते नहीं. तो वो लोग मुझे ही ईश्वर मानते हैं. आप जैसा बोले हैं वैसा सब लोग भी बोलते हैं. वो मिथ्या नहीं है. आप जो बोला वो मिथ्या नहीं है, वो सही है. लेकिन इसीलिए क्यों वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए बोल रहे हैं कि वो लोग सकाशादपि परमं परमेश्वरम अविज्ञाय मत्तः परस्मिन् परमेश्वरे अविज्ञाते सति इत्यर्थः. तो वो लोग तो मेरे से भी ऊपर रहने वाला जो परमेश्वर है उसको जानते नहीं, इसीलिए वैसा बोलते हैं. मम एतावत्तुं स्याद् इति अनेक कर्तृत्वत्वेपि यद्वा मत्तः परम अविज्ञाय एतावत्तुं लोक ब्रुवन्ति इति शेषः. तो लेकिन नारद
आप तो ऐसा क्यों बोले हैं, लेकिन मुझे पता है आप इसीलिए बोले हैं कि आप तो सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी इसीलिए बोले हैं केवल आप इसकी द्वारा बाकी बाकी लोगों को इधर याद दिलाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं। सर्वज्ञो भी तानेव ज्ञापय, तुम उन लोगों को इधर याद दिलाने के लिए आप ऐसा पूछे हैं। तो तुम मत्तः परम अविज्ञाय भविष्य, तो इस प्रकार ही हम लोग हैं। इससे क्या होता है कि तो बाकी लोग भी अभी तक ब्रह्मा जी हैं, सबसे बड़ा है करके जान रहे हैं, और नहीं तो सोच रहे हैं। ऐसा लोगों अभी आगे ब्रह्मा जी के उत्तर से उनका भी अज्ञान दूर चले जाएगा। ओहो, ब्रह्मा जी सबसे ऊपर नहीं है, और ब्रह्मा जी के ऊपर भी और भी कुछ है, और उन्हीं को हम लोग उपासना करना चाहिए करके अभी ब्रह्मा जी के मुख से स्वयं सुनने वाले हैं हम लोग। The frog in the well, the logic illustrates that a frog residing in the atmosphere and boundary of a well cannot imagine the length and breadth of the gigantic ocean. Such a frog, when informed of the gigantic length and breadth of the ocean, first of all doesn't believe that there is such an ocean. And if someone you assures him that factually there is such a thing, the frog then begins to by measure it by imagination by means of pumping its belly as far as possible. With the result that the tiny abdomen of the frog bursts and the poor frog dies without any experience of the actual ocean. Similarly, the materialist scientists also want to. Prabhupada always comes in this. This is the right situation actually. He takes the opportunity to condemn the material scientist. Okay, you can see that. So next, येन स्वरोचिषा विश्वम् रोचितं रोचयाम्यहम् यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथाक्षग्रह तारकाः। Translation. After the Lord's creation by his personal effulgence, known as the Brahmacharis. Just as when the sun manifests its face in fire, the moon, the firmament, the influential planets, and the two stars also manifest their brightness. नारद, मैं कौन हूँ? अहम को, मैं कौन? मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ? मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं। अहम को वरा कहा, कौन सा बड़ा आदमी हूं मैं? मैं तो पेशा हुआ चीज को दोबारा पीसता रहता हूं, तो पीसा हुआ चीज को दोबारा पीसने वाला हूं। एक्चुअली एक्चुअली पहली बार कौन पीसे तब? तो भगवान पीस दिए हैं, उसके बाद उसी को लेकर हम पीसते हैं। कौन सा बड़ी बात है? तो स्वरोचिषा स्वप्रकाशेन परमेश्वरेण प्रकाशितम अहम। एक्चुअली नारद, मैं भगवान की शक्ति से ही सब कुछ कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं जस्ट पीसा हुआ चीज को पीसने वाला हूं। जैसे एग्जाम्पल है ना, जैसे सूर्य, ये सूर्य चंद्र क्या करते हैं? वो खुद का प्रकाश दे रहे हैं क्या? नहीं, वो भगवान से जो भी प्रकाश आता है और उसी ऊपर वो गिरकर और उधर से इधर प्रकाशित होता है, हम सबको प्रकाशित करते हैं। जैसा अभी हम लोग बचपन में खेलते थे ना, एक आईना भगवान सूर्य की सनलाइट के सामने रखकर ऐसे ऐसे खेलते थे, है ना, रिफ्लेक्ट। हाँ, लेंस भी, और नहीं तो कोई मिरर लेके तो इस तरफ लाइट की तरफ रखेंगे तो वो जाके जो है, हाँ, घर में अंधेरे में किसी की आंखों में लगाना, ये सब करते हैं। तो वैसा ही जैसा मिरर, तो मिरर वो जो लाइट मिरर से आ रहा है वो मिरर का है क्या? नहीं ना, वो तो लाइट का है। वैसे ही सूर्य भी ओरिजिनल नहीं है, उनके पास लाइट ओरिजिनल से नहीं आता है। उनमें भी वो जो शक्ति है वो भगवान से आता है। तो जैसा सूर्य में जो भी प्रकाश करने की जो शक्ति है वो ऊपर से जैसा आता है भगवान से, वैसा ही मैं भी हूं नारद। मैं भी जो भी ऑलरेडी बनाया गया चीज को बनाता रहता हूँ, और कुछ नहीं। मेरे ऊपर भी
ऊपर हैं और एक, इसलिए श्रुति में कहा गया न तत्र सूर्यो भाति न च चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। भान्तम अनुभाति, ये पूरा की पूरा दुनिया में जो भी देवताएं नहीं तो जो ब्रह्मा जी सब जो कंट्रोल करते हैं वो उन्हीं का नहीं है, वो पूरा पावर, वो सब कुछ भगवान का है। जैसे हम लोग में भी जो भी शक्ति है, किसी को सोचने की शक्ति है, किसी का बोलने की शक्ति है, नहीं तो किसी का तो कुछ प्ले करने की, नहीं तो कुछ गाने की, इस अलग अलग शक्तियां हैं, वो सभी किसका है? वो सब भगवान का है। लेकिन हम सोचते हैं कि तो मेरा है, लेकिन इधर ब्रह्मा जी का मूड देखिए, वो कोई भी माने उनमें हम सबसे बढ़कर बहुत बड़ा शक्ति है, क्या है? पूरा सृष्टि करने की शक्ति है उनके पास। उतना शक्ति रहते हुए भी वो क्या बोलते हैं? ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। लेकिन यदि हम लोग में छोटा सा भी क्वालिटी रहेगा तो ए मेरा है, मेरा, यस आई डिड, ऐसा क्यों नहीं? आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, मैं तो इतना किया, मैं उतना किया, मैं ये किया, मैं वो किया, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे मैं कुछ नहीं किया। बांतम अनुभाति, ऑलरेडी चमक रहे हैं उसी को चमकाया गया, ऑलरेडी बनाए गए उसी को बना रहा हूं मैं, और जो भी शक्ति है वो उन्हीं का है। मेरा में शोषण करने की जो शक्ति है वो उन्हीं का ही शक्ति है, ऐसा बोल दिए। Lord Brahmaji said to Narada that his impression that Brahma was not the supreme authority in the creation was correct. तो वे करेक्ट नहीं है बोल दिए, मैं सुप्रीम क्रिएटर नहीं। Sometimes less intelligent men have the foolish impression that Brahmaji is the cause of all causes. But Narada wanted to clear the matter by the statements of Brahmaji, the supreme authority in the universe. As the decision of the Supreme Court of a state is final, similarly, the judgment of Brahmaji, the supreme authority in the universe, is final in Vedic process of acquiring knowledge. अभी ब्रह्मा जी, नारद जी ऐसा किए कि ब्रह्मा जी के मुख से ही आंसर बुलवा दिए। यदि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, ऐसा अनजान की जैसे नहीं पूछते तो क्या होता था? तो क्या सोचते हम लोग? डायरेक्टली वो भगवान के बारे में बोलते थे। तो हो सकता है ब्रह्मा जी भी ऐसा जो डाउट है वो रह भी जाता था ऐसा। इसीलिए अभी विपरीत भावना को भी अभी खत्म किया गया, असंभावना और विपरीत भावना दोनों, दोनों भी। तो और भगवान तो है लेकिन ब्रह्मा जी भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है ना, वो डाउट अभी फिनिश हो गया। तो किसकी? साक्षात ब्रह्मा जी की मुख से आ गया। ये करुणा है किए हैं एक्चुअली नारद मुनि हम सब लोगों के ऊपर, नहीं तो हाँ। असंभावना विपरीत भावना, अच्छा अच्छा, असंभावना विपरीत भावना ये दो हैं। असंभावना माने इसके अर्थ है यदि कोई, तो एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेकर बोलता हूँ। जैसे सृष्टि है, ये सृष्टि बनाने वाला कृष्ण है लेकिन कृष्ण नहीं है करके जो भी संदेह आता है, उस संदेह को क्या बोलते हैं? असंभावना। माने कृष्ण क्रिएटर नहीं हो सकता है, असंभव है, इसी को बोलते हैं असंभावना। विपरीत भावना क्या है? तो कृष्ण ही क्यों है, शिव हो सकता है, अन्य विपरीत माने कृष्ण को सुप्रीम ना, उसकी विपरीत और कोई हो सकता है, ऐसा सोचना ये है विपरीत भावना। असंभावना और विपरीत भावना ये दोनों से भी मुक्त होना चाहिए, तभी हम लोगों को श्रद्धा आती है। तो शास्त्रों का अध्ययन करने की मतलब क्या? तो श्रद्धा बनाने के लिए, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। तो श्रद्धा का अर्थ क्या है? असंभावना विपरीत भावना ये दोनों का नाश होना। तो हमारा सबके हृदय में कई प्रकार की असंभावनाएं हैं। तो माने हम लोग लिप सर्विस तो कर सकते हैं भगवान सुप्रीम लॉर्ड है करके, लेकिन वो वास्तव में हृदय में आता ही नहीं है वो। ये इसीलिए किसके कारण क्या हो सकता है? क्या कारण ये भी हो सकता है कि हमारा हृदय में अभी भी असंभावना है और विपरीत भावना भी रहा हो सकता है।
और उस पुराण में वो कहा गया, इस पुराण में ये कहा गया, लेकिन जब तक वो क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा, भले उस पुराण में शिव जी को कहा गया, उस पुराण में और एक पुराण में ब्रह्मा जी को कहा गया सुप्रीम लॉर्ड है करके, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं आएगा, तब तक क्या रहेगा हृदय में, तो विपरीत भावना रह ही जाए थोड़ा सा भी मात्रा में। और इसीलिए क्या बोलते हैं, बुक्स आर द बेसिस, बुक्स आर, प्रभुपाद क्यों स्ट्रेस करते हैं, बुक्स दिस इज दैट दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल असंभावना एंड विपरीत भावना, असंभावना और विपरीत भावना दोनों को नष्ट कर देती। इसी की द्वारा क्या होता है हम लोगों को, तो एक श्रद्धा, श्रद्धा प्रकट होता है। लेकिन श्रद्धा प्रकट होना है इधर, लेकिन समस्या क्या है, तो जो भी शास्त्र में कहा गया उतना अपने आप से पढ़ने से श्रद्धा आ जाता है क्या, लेकिन उसको भी यकीन भी करना है ना, क्यों यकीन करना है मैंने, लेकिन तो जो भी कहा गया शास्त्र में वो ऐसा चीज है जो एक्चुअली कैसा है, वो अचिंत्य है, वो लॉजिक से ऊपर जाते रहते हैं वो सब चीज। जैसे भगवान का जन्म ही भी है और जन्म नहीं भी है, और भगवान सर्वव्यापी है, और लेकिन भगवान एक स्थित भी है, एक जगह में स्थित भी है, और ऐसा ऐसा अलग अलग विपरीत विपरीत माने जो भी गुण है भगवान के बारे में कहा गया, और उन चीजों को कैसा स्वीकार करें, उन सभी चीजों को कैसा स्वीकार करे, उस पर यकीन आना चाहिए ना। तो सुन रहे तो रह रहे हैं, शास्त्र से सुनेंगे ये ऐसे ऐसे करके, उन एग्जाम से कैसे यकीन हो जाए। इसलिए केवल पढ़ने से हो जाता है क्या शास्त्र, नहीं, केवल पढ़ने से असंभव विपरीत भावना नष्ट होता है क्या, नहीं, बल्कि क्या चाहिए, फेथ माने विश्वास चाहिए। वो कहां से आएगा, शुद्ध भक्त की कृपा से, कृपा बिना वो नहीं है। पढ़ तो लेंगे, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब कृपा नहीं होता है ना, तो विश्वास नहीं होता है, वो हृदय को टच करते ना, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाते। इसीलिए बहुत लोगों किताबों तो लिख दिए हैं भगवत गीता के ऊपर, लेकिन भक्त बने क्या, नहीं बनते। लेकिन प्रभुपाद जी का, उनकी कृपा है उनसे, उन शब्दों में, केवल वो शब्द नहीं, जैसा अभी सुखदेव गोस्वामी क्या बोले, आप हमारा मुख से बुलवा दीजिए और उन शब्दों में भी आप स्थित रहिए, उसमें आप प्रकट रहिए, इससे क्या होगा, उससे सबका बेनिफिट हो जाए। वैसे ही इधर हम लोगों तो पढ़ तो रह रहे हैं एक्चुअली, लेकिन ये केवल अक्षर नहीं है, बल्कि उनकी कृपा भी है उसमें। वो क्या करती हैं, वो उस पर विश्वास दिलाती है। नहीं तो हम लोगों, बहुत लोगों सुन के ऐसा ही "ओ, अच्छा लिटरेचर है" करके छोड़ देते, ऐसे नहीं छोड़ते, भक्त बन जाते। ये संभव सबके, कृपा कौन दे सकते हैं, जिसके पास है शक्ति। तो इसीलिए जिसके पास कृपा माने ही भक्ति, कृपा, कृपा देने के लिए क्या चाहिए, हृदय चाहिए ना। किस प्रकार के हृदय, हृदय बहुत एकदम कड़ा रहेगा तो दे सकती कृपा, नहीं, कोमल रहना चाहिए। तो हृदय कोमल होता कैसा, हाँ? हृदय कोमल कैसा होता है, भक्ति देव से होता है, भक्ति से, जितना भक्ति रहेगा उतना हृदय कोमल हो जाए, नहीं तो हृदय कठिन रहता है। तो बाकी लोगों का कोई भी हो जाए, हमको क्या लेने देना, वो संसार में मर रहे हैं तो भी कोई भी, तो उनका प्रति कृपा नहीं होता है। लेकिन किसके लिए हृदय कठिन है, जब हृदय नरम हो जाता है, तब उनकी दर्द तुरंत इस गला हुआ हृदय को टच करते ही उससे कृपा निकल के बहने शुरू हो जाती। कोमल हृदय तुरंत रेस्पॉन्ड करती है, दूसरों के दुख को देखकर, पर दुख दुख वो छू लेती है, और तुरंत इस हृदय से कृपा बह के सब जगह फैलता रहता है। लेकिन जिसकी हृदय कठिन है, कठिन हृदय किसके पास रहता है, जो कर्मी है, कर्मी लोगों का कैसा रहता है, मैं काम करूंगा और मैं कमाऊंगा, मैं अपना एंजॉयमेंट करूंगा, मैं और मेरा फैमिली, तो यही भावना में रहते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं और कमाते हैं और वो खुशी लेते हैं, और कोई भी 4 रुपए कहीं भी मिलते तो वो काम करेगा, नहीं तो बिना 4 रुपए का प्रयोजन का काम कोई करेगा, कर्मी कभी नहीं करेगा। तो मेरे क्या लाभ है, मेरे क्या लाभ है। यदि हम लोग भी ऐसा सोचेंगे कृपा देने के लिए, तो हम भी कर्मी मेंटालिटी को मिक्स करके बैठेंगे अपना भक्त की ड्रेस में,
नहीं रहना चाहिए। ये अहितुकी, अपना स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों का दुख को दूर करने के लिए होना चाहिए, नहीं तो भगवान की प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, तभी जाकर ये कृपा होती है। लेकिन नहीं तो हमारा ये डेवलपमेंट होगा, हमको इससे तो 10 लोग जुड़ जाएंगे, उससे तो हमारा चले रहेंगे, तब हमको जब भी कभी डोनेशन चाहे तो मिल जाएगा, और उससे तो हमारा एक पूरा साम्राज्य बन जाएगा, हम लाइफ सेफ सिक्योर है, हमको खाने पीने के लिए रहने के लिए व्यवस्था बढ़िया बन जाएगी। तो इसको फ्रूटी मेंटालिटी बोलते हैं। ये मेंटालिटी नहीं रहना चाहिए, हम लोगों का मेंटालिटी सेल्फलेस होना चाहिए, तभी वो कृपा है। वो किसका होता है? जिसका हृदय भक्ति से एकदम नरम हो गया, कोमल हो गया, वही लोग कृपा दे सकते हैं। नहीं तो हृदय हार्ड रहती है, जितना अपराध करेंगे उतना हृदय एकदम मजबूत होता रहता है। कोई भी किसी का दुख को देखकर कभी भी चलन नहीं होता है, ऐसे ले जाने दीजिए बाहर में, इनको ऐसे होने दीजिए, इनको ऐसे ही होना चाहिए। माने ये कठिनाई है। ये कठिनाई क्यों होता है? क्योंकि अपराध करते हैं भक्ति के प्रति, क्योंकि और इसीलिए भक्ति महारानी क्या करती है, उस हृदय को नरम नहीं बनाने देती। जा, कितना भी भक्ति करो वो वैसे ही रहेगा। अपराध करेंगे तो हृदय, मैंने भक्ति महारानी का ग्लोरी मैनिफेस्ट नहीं होगा हृदय में। भक्ति महारानी को वन ऑफ द ग्लोरी क्या है? अनर्थों को, मैंने क्लेशों को हटा के एकदम हृदय को मक्खन जैसा एकदम नरम बना देती है। किसी का भी कोई भी दुख देखते तुरंत इनमें द्रवित होता है, और ये अपना बारे में भी सोचेंगे नहीं, और तुरंत सेवा में लग जाते हैं। ये होता है कृपा, ये होना चाहिए वैष्णव का क्वालिटी। पर दुख दुखी इसीलिए कहा जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी भी कितना दूर गए, इतना उम्र में, क्या है, नहीं तो वो भी आराम से, मेरा कमरा तो है राधा दामोदर मंदिर में, बढ़िया से हमारा तो है, तो जो भी चलता रहता है, और थोड़ा सा भिक्षा करेंगे और रहेंगे, खाएंगे, अपना भजन करेंगे। नहीं, क्योंकि उनका हृदय बहुत नरम है, बहुत द्रवित है एक्चुअली, इसीलिए जाके इतना इतना दिन रात प्रचार में लगे हैं। दिन भर प्रचार, रात भर लिखना, ऐसा है। यही कृपा होता है एक्चुअली, ये वैष्णव का लक्षण, ये भक्ति से आता है एक्चुअली। नहीं तो कोई भी बाकी सब, जिनका जो भी कुछ लोग मंडेन कृपा दिखाते हैं, जैसा कोई कुत्ता गिर गया, नहीं तो किसी का ये हो गया तो चोट लग गया, वो एक्चुअली कृपा नहीं। उसके पीछे भी तो कुछ रीजन रहता है, जब भी रीजन रहेगा उसको कृपा नहीं करते। क्या रीजन रहता है? वो सब उनको समाज में बहुत बड़ा आदमी करके देखेंगे, अरे बाप रे, ये तो जब भी किसी का दुख होते तो ये संभालने वाले हैं, ऐसा उनको एक मजा आता है। इसलिए इस मजा के लिए वो काम करते हैं। लेकिन लगता है हम लोग सोचते हैं वो कृपा है, वो कृपा नहीं। कृपा माने एक ही है, फंडामेंटल निरहैतु की। इधर वैष्णव कृपा करते हैं, किसके लिए करते हैं? उनके लिए कोई प्रयोजन है क्या? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए ऐसा हृदय नरम होगा भक्ति से ही, और कोई अन्य प्रोसेस कुछ नहीं कर सकते, जैसे ज्ञान, नहीं तो जो भी अष्टांग योग, इससे हृदय क्या होता है? नष्ट होता है। वो हृदय को भस्म करके, माने स्थूल और सूक्ष्म देह दोनों को खत्म करके शुद्ध केवल जीवात्मा को ले जाके ब्रह्म में लीन करा देते हैं, कराना चाहते हो बस। मन इतना कठोर बना देगा कि माने कोई भी गुणों को देखना ही नहीं चाहते। माने कोई भी कष्ट आने वाला आता तो वो क्या सोचेगा, किसी कष्ट हो रहे तो उसमें भी कोई कष्ट देखेगा ही नहीं। सब ब्रह्म ही है, क्या है इसमें? माने उसका हृदय कितना पत्थर जैसा होता है। तो माने एक, इसीलिए वो भी वो सोचते हैं कि ये भी भौतिक ही है, तो अल्टीमेटली इसीलिए उनका हृदय गलता ही नहीं। ज्ञानियों का हृदय पत्थर जैसे है, हृदय के भक्तों के हृदय मक्खन जैसे। तो ये है भक्ति का महिमा, भक्ति जैसा प्रयोजन, भक्ति जैसा तो बढ़कर कोई चीज है नहीं। हाँ? हाँ, 12:55 to 1, ½ है, तो हम थोड़ा सा इधर से स्पीड बढ़ाएंगे।
Yeah. Well, stop. तस्मै नमो भगवते
वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्. Translation: I offer my respectful obeisances and meditate upon Lord Krishna, Vasudeva, the personality of Godhead, who is invincible potency influences them to call me the supreme controller. So here Brahmaji is saying that what is the reason for them to call him as the supreme creator? The reason is Vasudeva's inferior energy is causing them to call him like this. So you will be seeing here the so that's why he is indicating from this sloka. Brahmaji is indicating all these people, they are calling me as supreme creator because of Vasudeva's inferior energy. That is being further explained in the 13th sloka. Let us Vilajjamanaya yasya statum ikshapato muya vimohita vikattante mamahamiti durdiyaha. The illusory energy of the Lord cannot take precedence, being ashamed of her position, but those who are bewildered by her always talk nonsense, being absorbed in thought of it is I and it is mine. So here, Jagadguroho Viswasrashta Tvam Bhavasyeva iti Tubhyam Adaradayanah Santah Kim Maya Mohitah. नारद मुनि बोलते पूछते हैं, पिताजी कुछ लोग आपको जगत गुरु विश्व स्रष्टा सब कुछ आप ही बनाने वाले हैं ऐसा बोलते हैं, वो सभी क्या? तो और आपको बहुत आदर भी देते हैं, तो वो सभी माया से मोहित है क्या? हाँ ऐसे हो सकता है क्या? तो पिताजी बोल रहे हैं हाँ हाँ सत्यम, सही बात. भगवत संबंधम विना ये आदरदायिनः ये चे तस्मदादरग्राहिणश्च ते उभे अपि बहिर्दर्शिनः. नारद, भगवान की संबंध की बिना जो भी आदर देते हैं और उस आदर को जो भी लेते हैं भगवान के संबंध के, वो दोनों माया में. जैसा भी कभी कभी हम लोग देखते हैं बिना भगवान का कुछ, भगवान के संबंध बिना, इस देवताओं को भी यदि आदर देंगे, जैसे देवताओं का प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो यदि उधर भगवान के बिना संबंध, वो केवल उसी देवता को आप प्रणाम करेंगे, तब तो वो भी माया में ही है. हम लोग उस समय माया में ही है. तो ऐसा ही कोई भी है, किसी भी व्यक्ति को भी आप प्रणाम करेंगे, कभी कभी हम लोग बड़ा बड़ा व्यक्ति के पास जाके प्रणाम करते है ना, बहुत धनी वाले हैं, नहीं तो बहुत बड़ा पोस्ट है, लेकिन उस समय भी वो भी क्या है, माया में ही. यदि यदि उस व्यक्ति को भगवान से संबंध ना रखकर देखें, उस आदर की पीछे भगवान की संबंध नहीं है, तब तो वो केवल भौतिक ही हो जाती, माया में ही रहा हो माना जाता है. क्योंकि जैसा अभी कोई भी व्यक्ति नमस्कार करते हैं तो किसको करते हैं? उस व्यक्ति को करते हैं, उस व्यक्ति में रहने वाले परमात्मा को करते हैं. हाँ, भगवत संबंध से ही उस देह, उस परमात्मा की तो स्थान है, माने एक घर है, इसी भावना से उसको प्रणाम किया जाता है. ऐसा डायरेक्टली उसी के व्यक्ति को, ये तो बड़ा आदमी है, इसके पास बहुत धन है, इस भावना से कोई भी प्रणाम करेंगे तो इसका अर्थ है वो माया में. हाँ, वो तो भगवत संबंध है ना, उनको महाभागवत है करके प्रणाम करते, माने भगवान से संबंध बिना जोड़ के, भगवान से संबंध डिस्कनेक्ट करके उस व्यक्ति को प्रणाम, उस वस्तु को प्रणाम किया, नहीं तो उस व्यक्ति को प्रणाम किया, उसका आदर किया, तो वो भौतिक हो जाता, वो माया में रहा माना जाता. डोनर को हम लोग क्यों प्रणाम करते हैं कि
वो भगवान की सेवा किए हैं ऐसे करके भगवान से संबंध रखकर ये भगवान के सेवक बने हैं, इसी भावना से प्रणाम करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि ये पैसा दिए इसी से हम खाए पिए और मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भावना से करेंगे तो ये बहुत दुख हो गए। ये भगवान की सेवा करने वाला है, इस भावना से कि तो भगवान संबंध जोड़ दिए उधर, तो इसीलिए वो क्या हो गया, तो वो आदर से ही है। और कोई आपको सम्मान दे रहे हैं तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हो गया हूँ, तो मैं बहुत बड़ा ये हूँ, प्रचारक हूँ, नहीं तो ये हूँ करके सोच के मैं ग्रेट हूँ, इस भावना से लिया, भगवान से संबंध बिना जोड़ के आप खुद ले लिया, तो भी वो भी बहुत ही मतलब जो व्यक्ति प्रणाम कर रहे हैं, है। एक पर्सन करे परमात्मा को। तो परमात्मा को, परमात्मा का देह है, परमात्मा का ये आश्रय है, ये मंदिर जैसा है, उस भावना से उसको परमात्मा को देखते हुए परमात्मा को प्लस उनको भी दोनों को ही दे उस देह। हाँ हर एक जीव को प्रणाम करना चाहिए। हाँ आज हाँ वैसे ही, नहीं तो हम उस समय कृष्णा कॉन्शियसनेस से हट गए, माने आवच्छिन्न भक्ति नहीं है, अप्रतिहता भक्ति नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया अभी। अब हमारा भक्ति ज्ञान कर्मादि अनावृत नहीं है, आवृत हो गया था उस समय, भक्ति की अतिरिक्त हृदय में और भी कुछ किसी को भी स्थान दे दिया आप। एक न मनसा बोल रहे हैं ना भगवान, क्या बोल रहे हैं, आपका दिल में मैं एक ही रहना है और कोई नहीं रहना है, कुछ रह के तो भी वो मेरे संबंध से ही रहना है, नहीं तो नहीं। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है, पूरा दिल समर्पित करो, जैसे लड़की लड़का को, लड़का लड़की को चाहते हैं ना, कितना आप सब कुछ मुझे ही देखना है और किसी को नहीं देखना है। कृष्ण कृष्ण इसमें भी और भी स्ट्रांग है एक्चुअली। माम एकम, एकम एकम, बार बार बोल, कुछ भी देखते तो मेरा करेक्शन में देख, नहीं तो नहीं। प्रत्येक जन को प्रणाम करना चाहिए जैसे। प्रत्येक, इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी को क्या करना चाहिए, तो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम जाने के लिए, उत्तम में क्या होता है, वो हर एक व्यक्ति में भी अपने इष्ट देवता को देखते हैं, उत्तम स्थिति वो रहती है। लेकिन कनिष्ठ भक्त क्या है, कनिष्ठ मान इधर चेतना के अनुसार कनिष्ठ को हम लोग डिवाइड करेंगे, कनिष्ठ मध्यम उत्तम, श्रद्धा के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, चेतना के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, साधना के अनुसार डिवाइड कर सकते हैं, और नहीं तो पंच संस्कारों के अनुसार भी डिवाइड कर सकते हैं। तो कनिष्ठ मध्यम उत्तम कोई पेटेंट राइट नहीं, कनिष्ठ मध्यम माने बेस्ट, मिडिल और हायर, ये किस आधार से है, तो ये, तो ये कनिष्ठ मध्यम उत्तम किस आधार से, चेतना के आधार से डिवाइड किया गया। उसमें क्या कहा गया, जो उत्तम भक्त है वो सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में भगवान को ही इष्ट देवता, इष्ट भगवान को देखते हैं, इष्ट रूप को, भगवान के इष्ट रूप को। तो उस स्थिति में जो नहीं है तो वो लोग मध्यम, नहीं तो कनिष्ठ, कनिष्ठ तो क्या देखते हैं, केवल भगवान की विग्रह में ही भगवान को देखते हैं ना। तो ऐसा कनिष्ठ भक्त को पहले साधना में एक रिकमेंड किया गया, क्या है, हर एक माने व्यक्ति में परमात्मा को देखने की स्थिति उत्तम को तो रहता है, देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कनिष्ठ को कम से कम अभ्यास करना पड़ता है। कपिल मुनि बोलते हैं तृतीय स्कंद में, क्या है, प्रति जीव में भी, हर एक जीव में परमात्मा वास कर रहा है करके, ये नॉलेज से कम आप देखना चाहिए, उस दृष्टि से देखना शुरू किया जाए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे तो वो अच्छा विग्रह में भगवान देखना नहीं है, बल्कि सब जगह देखने की उनका स्थिति बनेगा आगे। कनिष्ठ भक्त को ये रिकमेंड किया गया ऑलरेडी, तो उनकी साथ साथ में शास्त्र की मैंने भक्ति के प्रति श्रद्धा तो बढ़ाना चाहिए कनिष्ठ से आगे जाने के लिए, इसके साथ साथ उनको ये भी करना चाहिए, समस्त भूतों में भगवान है करके, भले वो देखते नहीं लेकिन शास्त्र कह रहे हैं और इसलिए हमको देखना है, इस भावना से जीवात्माओं को भी देखना है। तो इस प्रकार, तो नारद सही बात है, आप जो बोले हैं, तो कुछ लोग जो भी है आदर लेते हैं बिना भगवान की संबंध का, जो भी आदर है वो भी सही नहीं है, और जो लेते हैं वो भी सही नहीं है, दोनों सही नहीं, दोनों माया से मोहित ही है। इसीलिए तुरंत तो ब्रह्मा जी एक शुद्ध भक्त है, इसी के कारण तो मुझे आदर ऐसा मत दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मैं असली करता नहीं हूं, मैं असली सृष्टि करता नहीं हूं। लेकिन ये सब लोग ऐसा क्यों करते हैं, कारण क्या है, एक विलज्जमाना,
विलज्जमानया यस्यास्तातुम ईक्षापते मुया विमोहिता। वो सब मोहित है, किससे? एक स्त्री है उनसे मोहित, उनको बहुत शर्म भी आती है। क्या है वो कभी भी भगवान की सामने नहीं आती है। ऐसा एक शक्ति है और वही माया है, और उसी माया की द्वारा मोहित होकर ऐसा करते हैं। तो ये क्यों शर्मिंदा होती है, भगवान के सामने क्यों नहीं आती है? ये भगवान के सामने इसलिए नहीं आती है, वो कपटी है। क्या है वो? विलज्जमानया मीन्स मत कपटम असौ जानाति इति कपटिन्या स्त्री व। कोई भी कपट स्त्री है वो सामने सामने नहीं आती है, वो सब पीछे पीछे रहती है। ये भी माया कपटी है, इसीलिए वो इस कपटता के कारण वो भगवान के सामने आ नहीं पाती। वो हर वक्त कहाँ रहती है? पीछे रहती है, पीछे पीछे घूमती रहती है। मत कपटम असौ जानाति। क्यों सामने नहीं आते हैं? भगवान को तो मेरा कपट का काम पता है। क्या करती है वो? परोपि मनुते नम आत्मानम त्रिगुणात्मकम। जीवात्मा वास्तव में तो वो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध है और माया से परे है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा करा देती है, अपने आप को शरीर मानने के लिए बना देती है, शरीर मानने की स्थिति बना देती है। इसीलिए वो शर्मिंदा हो, ऐसा काम क्यों कर रहा हूं मैं, इसीलिए गलत जमाना। तो इसी इस कपटता के कारण वो भगवान के सामने आती नहीं, वो पीछे रहती है, पीछे हर वक्त क्या रहती, पीछे ही रह जाती है। तत्पृष्ठदेशे एव स्थितवत्या अमुया माया विमोहिता। तो माने इसके अर्थ क्या है? वो पीछे रहते हर वक्त है ना, कभी सामने नहीं आती है। माने वो किस लोगों को पकड़ती है? जो भगवान के पीछे हैं, उन्हीं लोगों को वो पकड़ती है। ऐसा नहीं है कि सामने आकर सामने रहने वाले व्यक्ति को पकड़ के पीछे नहीं ले जाती है, सामने आते ही नहीं है वो। तो माने जो लोग पीछे रह गए उन्हीं लोगों पर अपना राज चलाती है। पीछे रहने वाले माने इधर पीछे रहना, आगे रहने की मतलब क्या है? जो भगवान की उन्मुख है और भगवान की विमुख है। जो जीवात्मा भगवान से विमुख है उन्हीं लोगों के ऊपर अपना राज करती है। जो भगवान की पीछे प्लेस में पीछे तरफ है, माने तिरोमुख है, तो विमुख है, उन्हीं को वो अपना प्रभाव डालती है। और सामने आकर जो भगवान सन्मुख, सामने रहने वाला जीव माने सन्मुख जीव, सन्मुख जीव को वो पकड़ती है क्या? कभी नहीं पकड़ती है। मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेता तरंतिते। जो व्यक्ति मेरा प्रति सन्मुख हो गया, इधर शरणागत होना माने भगवान की तरफ मुड़ गया, उसके ऊपर उनका प्रभाव नहीं रहती। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर अभी भी है प्रभु, कैसे? इसीलिए कि हम लोग इसके अर्थ है, हम लोग पूरा सन्मुख नहीं, तोड़ा हुआ तो तोड़ा छोड़ देती हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम सदैव। तो भगवान भी उतना ही पकड़ते हैं आपको जितना आप छोड़ दिए, और उनको जितना आप पकड़ेंगे वो भी आपको उतना पकड़ेगा, और माया उतना छोड़ देगी। हाँ? हम लोग साइड में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर दो ही प्लेस है, पीछे ने तो आगे है। क्योंकि भगवान इतना बड़े हैं कि उनका आगे साइड्स कोई नहीं है, उनका सामान कोई नहीं, उनके सामने रहो नहीं तो उनके पीछे रहो। उनके साथ में कोई नहीं खड़ा हो सकते। वही पीछे स्वीकार किए साइड में धीरे 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 धीरे, हाँ, साइड में जाएंगे ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। माने भगवान का भी नहीं, माया की नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम ऐसे रह जाएंगे, माने ब्रह्म में लीन। ये ब्रह्मन मेरी से गुजरा। इसीलिए हम लोगों को सामने आ जाना चाहिए, माने भगवान के सन्मुख में। माने इससे जीवात्मा दो प्रकार का है। माने प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे और भी जीवात्मा और कुछ ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन आचार्यों का मतलब क्या है अभी इधर? तो पीछे रहने वाला और आगे रहने वाला, सामने रहने वाला, ऐसा दो प्रकार की जीव अनादिकाल से है। और माने इसका अर्थ क्या है? अनादिकाल से जो बद्ध जीव, माने वो पीछे रहने वाला जीव, और अनादिकाल से भगवान से सन्मुख रहने वाला जीव, वो है नित्य मुक्त जीव। दो प्रकार का है। तो माने अनादि माने अर्थ क्या है इधर? नो क्वेश्चंस।
प्रभुपाद भी लिखते हैं अपना पर्पस में, इट्स नो नीड टू हाउ लॉर्ड इज कीपिंग द जीवात्मास हियर आर देयर, नोबडी नोस, नो क्वेश्चंस। और उसको जान के क्या करेंगे, अभी जानते कि समर्थ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जानने के लिए जो टूल यूज कर रहे हैं वो भी बीच में आया हुआ चीज है, वो इतना पावरफुल वाला भी नहीं है, जो बुद्धिमान है बहुत पावरफुल भी चीज भी नहीं है। तो इसीलिए तो ऑलरेडी हमको हमारा इस अभी जो कंडीशन जो रिलेटिव माइंड है उससे हम लोग रिलेटिव ही सोच सकते हैं, माने इतना से इतना तक, माने हम लोग अनादि से ये कब से है पता नहीं, हम लोग अभी पता चला कि हम लोग पीछे हैं और इधर इधर है इधर आना है, माने इधर सामने आना है, इसीलिए हमको इधर से इधर आने के लिए प्रयास करना है, बस इसके पीछे क्या हो गया और इसके बाद क्या होगा ये सब जरूरत नहीं, इधर माने इधर से इधर आने के लिए क्या करना चाहिए यही इंपॉर्टेंट। Somehow or other, Prabhupada also makes in every endeavor that how to turn the every jivatma towards the Lord. By hook or crook or by anything. That is our mission. प्रभुपाद का तो यही मूड है एक्चुअली हर एक जीव को, क्योंकि वो लोग तो जो रियलाइज जीवात्मा है वो टाइम वेस्ट नहीं करते, वो इतना लॉजिकल थिंकिंग इसके लिए भी एक समय पार कर देते, लॉजिक के भी पार करके आंसर देते, यही है हमारा, क्योंकि एकदम कंपैशन है, वो इतना तीव्र कंपैशन है कि लॉजिक सोचने के भी टाइम है, तो इतना तीव्र कंपैशन जीवात्मा जैसे ना जैसे उठाओ, जब आप कोई भी डूब रहे हैं कीचड़ में तो आप क्या करते हैं, और तुरंत एक्चुअली आप कुछ भी सोचेंगे नहीं, तुरंत आप हम डूब जाएंगे, नहीं तो हम गिर जाएंगे, नहीं तो हम ऐसा करना है वैसा करना, सोचते हैं क्या, तुरंत जब हाथ देते हैं या नहीं, यही कंपैशन है एक्चुअली, दैट मीन्स बियॉन्ड द लॉजिक और एनीथिंग, समटाइम्स यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ कंपैशन ऑफ द प्रभुपाद, नॉट दैट मीन्स ओ आप लोग कुछ लोग अपना तो ये थोड़ा सा बुद्धि लगा के क्या क्या विमर्शा करते रहते, इससे कोई नहीं, वो कंपैशन को समझ नहीं पाएंगे, देन इट्स अ फुलिशनेस। तो इसीलिए लोगों क्या होते हैं हमारा मूवमेंट को छोड़ के इधर उधर भागता रहता है, बट दे शुड नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ द आवर आचार्य and our especially our Prabhupada is compassionate, we are not able to understand that is so इस प्रकार दो प्रकार की जीवात्माएं, तो जो पीछे है ना नारद, उन्हीं लोगों का स्थिति है ये, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सुप्रीम लॉर्ड है। नेक्स्ट, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः। तो बोलते हैं नारद आप कुछ है नहीं, उस वासुदेव के अतिरिक्त सृष्टि में कुछ ही है नहीं, और वो और उनकी शक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। मैं अभी थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ। ये जीवात्मा है, जीवात्मा को माया क्या करती है, मोहित करती है ना, जो उन किन जीवात्माओं को जो भगवान से तिरोमुख है, इधर तिरोमुख का नहीं तो विमुख, इसका अर्थ है उसके पास भगवत तत्व ज्ञान नहीं, भगवत भगवान के संबंध में ज्ञान नहीं, क्यों नहीं है क्या नहीं, इसका अनादि बस, माने उसका क्वेश्चंस नहीं, नो क्वेश्चनिंग ओवर। तो इसीलिए एक ही है, इसके पास इस जीवात्मा के पास भगवान के संबंधित ज्ञान नहीं है, इसी को बोलते हैं विमुख, माने पीछे रहना। अच्छा अच्छा, ओ आदत हो गई हिंदी। तो इसीलिए क्या करती माया ऐसा जीवात्माओं को, ये एक दिन से शुरू हुआ ऐसा बात नहीं है, तो अनादिकाल से यही स्थिति है, उसको क्या है आवृत कर देती है, पहले एक एक
एक मास्क डाल देती है उसके ऊपर, उसी का नाम है अविद्या। इससे क्या हो गया, तो जब ये मास्क डालते ही जीवात्मा में आईनेस है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोला ना, आईनेस माने अहंकार है, वास्तविक अहंकार माने मैं आत्मा हूं करके जानने की शक्ति को ही इधर अहंकार बोलते हैं। तो वैसा शक्ति है जीवात्मा के पास, क्योंकि वो चित्त भी है और वो मैं आत्मा हूं करके जानने की शक्ति भी है उसके पास। तो इसलिए, लेकिन अभी माने वो अपने आप को जान सकती है। इसका स्वरूप क्या है जीवात्मा का, एक रूप स्वरूप भाग, माने यूनिफॉर्म फॉर्म। तो यूनिफॉर्म फॉर्म, फॉर्म है लेकिन यूनिफॉर्म फॉर्म। एक रूप स्वरूप, दैट इज स्वरूप मीन्स फॉर्म। व्हाट काइंड ऑफ स्वरूप, एक रूप मीन्स यूनिफॉर्म। Like a small light particle, like Prabhupada says, is a fire from a particle. So it's also is a fire particle, but it is very minute. The same here, Jivatma is also chit particle, so minute. So it's a uniform form. It's like just a spark. It's chit spark, and it is having the ioness, and that is being covered by the avidya now. So now means don't think that it's a beginning date. So that means just a phenomena. To explain, I should use that word. That's why I'm using. So when it is covered with the avidya, then what is the resultant of this? Jivatma is forgetting himself as I am soul. This is not able to identify himself as soul. Then in the next what? Maya is not only giving the avidya layer to it. On top of this, it is also giving the what? One more layer, that is ahankar. That means this is ahankar made by Maya, three gunas. This maiden one is this one. Mithya ahankar, that means wrong. That means is a layer given by this. And because, and on top of this, it is also giving the chittam and intelligence and mind and senses and sense objects. इतना लेयर्स डाल के अच्छा से ढक के रख दिया उसको। बेटा तुम कहीं भी कुछ भी नहीं जाने, आप मेरे साथ में रहो। हाँ, तो अभी इन सभी चीजों के ढक्के, तो ये मिथ्या अहंकार से क्या होता है, ये ये मेडन वन अहंकार, मिथ्या अहंकार, इस अहंकार से ये जीवात्मा पहले अविद्या से, अविद्या के कारण वो अपने आप को भूल गया, उल्टा इस अहंकार से मैं शरीर हूं करके सोचना शुरू कर। तो इसीलिए इसकी चेतना जो भी प्रसारित होता है, इस अहंकार के द्वारा प्रसारित होकर कैसा जानेगी, मैं ये इंटेलिजेंस मैं हूँ, अन्यथा ये बुद्धि मैं हूँ, और मैंने वो जो डिसीजन मेकिंग की पावर है मैं हूँ, ऐसा सोचने लगेगा। नहीं तो ये शरीर हूँ, मैं हूँ, लाइक मैं ये क्वालिटीज, जो भी इसमें रहने वाली क्वालिटीज हैं, जो इंटेलिजेंस में रहने वाली सामर्थ्य, नहीं तो चित्त में रहने वाली शुद्धता, नहीं तो माइंड में रहने वाली जो भी संकल्प और विकल्प, और सेंसेस में रहने वाली पटुत्व, ये सभी क्वालिटीज को वो खुद का क्वालिटी समझने लगी। खुद का क्वालिटी तो चित्त है, ज्ञान स्वरूप है, आनंदमय है, वो भूल के अभी ये क्वालिटीज ही मैं हूं, मेरा नेचर यही है, मैं ऐसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये सभी कहाँ है, ये सभी इधर है। जीवात्मा अच्छा भी नहीं बुरा भी, जीवात्मा चित्तमय है। तो मैंने अच्छा बुरा किसके हैं, सत्व गुण से आता है अच्छा, और रजोगुण से आता है, तो रजो और तमो गुणों से बुरा गुण आता है। वो सभी कहाँ रहते हैं, अंतःकरण में रह जाते हैं। नहीं तो मैंने इधर रहते, इधर रहते, इधर रहते, जैसे द्वेष करना, नहीं तो किसी का आंसू या जलन, ये सभी मन में रहते, ये क्वालिटीज है वो। तो अभी ये चेतना क्यों, ये अविद्या से आवृत होने के कारण जीवात्मा की चेतना, तो इसमें क्या समझने लगा, ये सभी खुद का है करके समझने लगा। मेन रीजन क्या है, तो अविद्या से आवृत। लेकिन अविद्या आवृत कौन किया, माया के, क्यों किया, विमुख है, पीछे हैं। और उनको एक ही सोल्यूशन है, क्या करना चाहिए अभी, ये माया छोड़ना है, ये अविद्या की सेटअप उनको हटाना है, एक डेरा हटाना है,
तो ये कैसे हटा देगी? वो कब हटा देगी? जब ये जीवात्मा भगवान की सन्मुख हो जाए, तुरंत चलो, इनको अभी मेरा काम हो गया है, अभी इधर। तो तुम्हारे वो भगवान के सामने आ गया है, तो वो सामने भी आकर पकड़ सकती है क्या? नहीं। तो इसलिए सामने आएगा ही नहीं। आप इसलिए क्या करना चाहिए? पीछे से सामने आना है। जितना सामने आ जाएंगे उतना तो हम लोग तो फ्री हो जाएंगे। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हम लोगों सामने ना आकर उसी केवल माया से लड़ेंगे। भगवान की सरेंडर ना होकर केवल हम लोगों माया से लड़ने के लिए प्रयास करेंगे। हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम ऐसा नहीं। माने भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो हर क्षण माया से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन उस क्षण को माया से लड़ने के लिए यूज करेंगे, मम माया दुरत्यय, कभी जीत ही नहीं सकते आप उनसे। अब इसीलिए माया को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भगवान की सन्मुख होना इंपॉर्टेंट है। भगवान माने भगवान सन्मुख होना माने सेवा करना, भगवान की हर मिनट को कैसा हम, तो माया से फंसना नहीं चाहिए ये सोचना नहीं, कैसा हर क्षण सेवा कैसा, और एक सेवा कैसा कैसा उनको प्रसन्न करे, कैसा वो एक क्षण को उनके लिए यूज करे, ये सोचना चाहिए। बार बार आप उसी के साथ में माया की गोद में जाकर मैं आपसे जीतूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा करके उधर लड़ने के लिए उनसे फाइटिंग करते रहेंगे, तो मैं कंट्रोल करने, मैं सेंसेस को कंट्रोल करने, मैं माइंड को कंट्रोल करने करके ऐसे बैठेंगे, कभी जीत हासिल ही नहीं कर पाएंगे। जिंदगी भर उससे फाइटिंग करते करते थक के, तो जैसा डोर के सामने कुत्ता है, गेट के सामने, और आप कुत्ता से लड़ रहे हैं, तो मालिक को बुला ही नहीं रहे आप, तो क्या करेंगे? कुत्ता काट काट के खून निकाल देगी। तो वैसे ही माया से लड़ना नहीं, मालिक को बुलाना है, मालिक को बुलाना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों भगवान को शरणागत होना चाहिए। भगवान इसीलिए बोले मेरा माया बहुत पावरफुल, उससे फाइटिंग मत करो, मेरा शरणागति लीजिए। तब तो वो क्या है, वो तो छोड़ देगी। तो माने आप सन्मुख हो जाएंगे तो कुछ नहीं करेगी। माने ये क्या होगा ये, इसीलिए हमारा चिंतन है। तो लेकिन हम लोगों को यही समस्या है, हर क्षण को भगवान की सेवा में लगाने हम लोग को आता ही नहीं है। ये कैसे है प्रभु जी? ये प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हम लोगों को तो वैसे उत्साह बनता ही नहीं है प्रभु। इसीलिए क्या करना चाहिए? इसका सोल्यूशन क्या है? साधुओं की संगति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हीं के साथ साथ घूमते रहिए, और वो आपको हर वक्त एंगेज रखेंगे। लेकिन हम लोग एंगेजमेंट को देखकर ये है तो हेडेक समझेंगे, तब तो माया के पास जाएंगे, तो आ जा बेटा आ जा, अभी ये सही आए हैं, मेरे लिए कस्टमर बन गए ये। तो कस्टमर को एकदम रगड़ रगड़ के वसूल कर देंगे। तो इसीलिए माया का कस्टमर बन जाएंगे, नहीं तो साधु का सेवक बन जाएंगे, आप जानिए। तो इसीलिए ये सभी लेयर्स कैसा बनाया गया अभी हम लोग सीखे, और कुछ नहीं। अभी हम लोग आगे काम क्या है, ये लेयर बनाना, ये लेयर ये लेयर ये लेयर, माने अहंकार, चित्त, इंटेलिजेंस, माने बुद्धि, मन, इंद्रियां, इंद्रिय पदार्थ, ये सभी बनाए गए। इसीलिए ये दृढ़ हो जाता है कि बाप रे ये लेस बहुत मजबूत है। ये बहुत भयानक का और करके रखा है, चलो हम इधर नहीं जाएंगे, भगवान की शरणागत हो जाएंगे। मान उससे लड़ना नहीं है करके समझे। ये बहुत पावरफुल है। कह रहा है ऐसे ढक के रख दिया, चलो अभी हमको इन सब से मुक्त होने के लिए एक ही सोल्यूशन। ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं, भगवान की शरणागत ना होकर केवल माया से लड़ते रहते हैं। भगवान क्या बोलते इसी में, क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, सो क्लेशोदिक तरस्तेषाम, बहुत कष्ट है, बहुत दुरत्या बोल देना ऑलरेडी, बहुत कठिन है करके, फिर भी इतना अच्छे से बेटा बेटा समझा रहे हैं एक्चुअली भगवान, तो सुन रहे बेटा, सुनो सुनो ये बात सुनो भाई, तो मेरा मेरे बारे में जानो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोचन। ए मेरे बारे में जानो, मेरा जन्म कर्म के बारे में जानो, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही
अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मेरा ऐश्वर्य आपका बुद्धि से भी परे है। मैं सब में हूँ, मैं सबकी बाहर भी हूँ, और सब कुछ, और सभी मेरे में है, सभी मेरे में भी नहीं है। ये सभी आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मुझे मानो, मुझे मानो, मुझे मानो कर कितना बात बोल रहे हैं। नहीं मानेंगे तो यही समस्या क्या आएगा, ये भी बोल रहे हैं। नहीं मानेंगे तो ये माया छोड़ेगी नहीं तुमको। और इसीलिए आप मेरा भक्तों की संगति में रहो, कहीं बाहर मत जाओ। माने बाहर मत जाओ, माने भक्तों के बिना तो कहीं दूर नहीं जाना है, भक्तों से दूर नहीं जाना है, उनकी आदेश के बिना कहीं अपना मनमानी से कुछ भी कल्पना नहीं करना चाहिए। तो माने आप माने नहीं, जो अपना गुरु है, जो श्रेष्ठ है, आपको ऊपर है, उन्हीं की संगति में आपको रहना चाहिए। उससे क्या फायदा हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है ये, क्योंकि कितना फायदा हो रहा है ये सभी जानने से क्या होता है, आपको साधुओं की संगति में रहने से कितना फायदा हो रहा है ये समझ में आता है। साधु संग को इतना हल्का नहीं लेंगे। नहीं तो हमारे जड़ बुद्धि से क्या सोचते हैं, खाने पीने रोटी के चक्कर में तो इन ज्यादा खा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं हम नहीं खा रहे हैं, ऐसे भौतिक बुद्धि लगा के और इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नकारते हैं, खो देते हैं। इसीलिए ये सभी चीजों का जानने के उद्देश्य है, साधु संघ का कितना महत्व है और वैष्णवों का कितना महत्व है और कितना फायदा हो रहा है आपको, हम लोग जान नहीं पा रहे, कितना महान फायदा। 1:30 we'll stop here and we'll be starting at 2:30 exactly. Thank you very much. अटेंडेंस सर, प्रभु जी थोड़ा पेन देंगे। आदि गोप निमाय प्रभु, हरे कृष्ण। अद्वैत प्रवीण प्रभु, अक्रूर प्रभु, अमृत गौर प्रभु, अनंत राघव प्रभु, बालेश्वर रूप प्रभु, बालेश्वर रूप प्रभु, भद्रनिताय प्रभु, दास रघुनाथ प्रभु, दया सुंदर निताय प्रभु, अच्छा अच्छा, धर्म नारायण प्रभु, नहीं गोपी भाव, जाह्नव अवधूत प्रभु, आपसे कला गौरंग प्रभु, कृपालु माधव प्रभु, मित्र सुदामा प्रभु, एब्सेंट प्रभु, एब्सेंट मोहन श्याम प्रभु, नाम गोविंद प्रभु, हाँ लाल प्रेजेंट, नेटवर्क गोपीनाथ प्रभु, एब्सेंट, एब्सेंट है ना, पद्मलोचन राम, पांचजन्य पांडव प्रेम, प्रद्युम्न भक्त प्रभु, राजेंद्र हरि प्रभु, रामनिष्ठा प्रभु, रसराज प्रभु, सर्वपूज गोलोक, शांत गोपीनाथ, श्याम सुंदर सखा प्रभु, हो तो ये सीताराम हरि प्रभु, सुबुद्धि राय प्रभु, आपसे लेना, उमापति प्रभु, उपनंद गो प्रभु, आपसे वसुधामा प्रभु, वसुदेव जीवन प्रभु,
वेद चैतन्य प्रभु, विजय उपेंद्र प्रभु, वीर चैतन्य प्रभु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लोट हिसाब से। मायावादी का है ना, तो मायावादी तो भगवान के शरीर को दिव्य है करके नहीं मानते, चिन्मय है करके। तो वो मायावादी का और अहंग्रहोपासक का डिफरेंस। तो अहंग्रहोपासक भगवान चिन्मय करके मानते हैं, वो खुद है करके समझते हैं। चलो चिन्मय भगवान में, हाँ वो चिन्मय भगवान में। और मायावादी भगवान को चिन्मय करके नहीं मानते, वो अहंग्रहोपासना करते तो भी भगवान के प्रति दोष बुद्धि है। क्या है कि भगवान भी माया से प्रकट हुआ देह है उनका, उनका देह चिन्मय है करके नहीं मानते। उनके अनुसार केवल ब्रह्म ही चिन्मय है, और भगवान की जो भी देह है, शरीर, अवयव, ये सभी ये मोड़ से बना है। जो अंग सोचते हैं कि जो भगवान कृष्ण नाम है, दे आर भगवान, हाँ वो खुद है। और भगवान सत्य है, कृष्ण सत्य है, लेकिन वो मैं ही हूँ। तो अभी वो क्या समझ, इनका क्या, अभी हम सब भगवान कृष्ण और जो भी आए, नहीं वो यही बोलते हैं कि तो अपने आप को भगवान है करके रियलाइज करना, इसी को अहंग्रह उपासना। कृष्ण ने अपने आप को कर लिया, भगवान कृष्ण राम अपने आप को, ये लोग अपने आप को उनका क्या धारणा है, भगवान कृष्ण राम के साथ क्यों होता है? जैसे मायावादी बोलते हैं भगवान कृष्ण राम ये बुढ़ने से बने। हाँ, इनका इनका है, विशुद्ध सत्व को मानते हैं, अहंग्रह उपासक में मानते हैं कि भगवान विशुद्ध सत्व है, वो मैं ही खुद है करके समझते हैं। और ये मायावादी वो भी अहंग्रह उपासना करते तो भी कैसा करेगा, भगवान तीनों गुणों से बना है, और इसीलिए तो वो केवल अपना चित्त को शुद्ध करने के लिए पहले अहंग्रह उपासना करते तो भी उसमें क्या है, उसमें एक लोभ है। क्या है, भगवान की देह को कुछ चिन्मय है, शुद्ध सत्वमय करके नहीं मानते, इसीलिए उनका अहंग्रह उपासना से उनको कोई फल नहीं है, मोक्ष नहीं है। लेकिन इसको आ जाएगा, चिन्मय हाँ उनको आ जाएगा। Prabhupada right summary. It should be in front of the Lord only. हाँ हाँ